Hello. Am I audible? Hello. Yes, Yes, sir. sir. Sir, Yes, sir. Yesterday Yes, sir. in my lecture, yes, Vita. Yesterday in my last lecture, we have completed all these interest on securities, then this compensation and all these points we have completed. Okay, but I have kept this page. At this point, we will going to discuss tomorrow. So this is the another income, which is taxable under their income from other sources. Okay, and that is the income in respect of gift. Okay, तो ये क्या बोला है, receipt of money or property by the individual or HUF for inadequate consideration or for without consideration. Okay, so suppose because this section is for whom, first of all keep in your mind. What this point says that if you receive a receipt of money or property for a inadequate consideration. Okay, suppose आपको कोई कुछ मिल रहा है, मतलब you are receiving, okay, the money or property for a inadequate consideration. Okay, so suppose if you are receiving the money or property for inadequate consideration, okay, or for without consideration, अगर आपको कुछ मिल रहा है यहाँ से, तो it is taxable under the head income from other sources. Okay, so here what is taxable? So देखो this what this point says, receipt of money or property by individual or HUF for inadequate consideration or for without consideration. Okay, देखो this section is for whom? First of all, this section is only for the individuals. This is not for every assessee. Okay, this is for the only individuals and HUF. Okay, this is not for every kind of assessee. This is for the individual and HUF. Okay, HUF for individual को ही ये section applicable हो रहा है. Okay, and this is for what? अगर आपको क्या मिला है तो ये head में taxable होगा. So either you are receiving, यहाँ पे क्या बोला है, you are receiving the receipt of money or receipt of property. Receipt of money or property. Okay, either for a inadequate consideration. Okay, inadequate consideration or for without consideration. Okay, without consideration. So suppose आप कौन हो, means when this section will be applicable to you, being a assessee, either you are an individual और यू आर HUF. अब दो में से एक कैटेगरी में फॉलो है तो ही ये सेक्शन अट्रैक्ट होगा. सो या तो आप इंडिविजुअल हो या तो फिर आप HUF हो. और आपको क्या मिलता है, आइदर यू आर रिसीविंग दी मनी, मतलब किसी से पैसा मिलता है, या तो फिर आपको मिलता क्या है, प्रॉपर्टी. और वो भी कैसे, मनी और प्रॉपर्टी आपको मिलते तो है या तो फॉर ए इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, ओके, और विदाउट कंसिडरेशन. मतलब या तो आप बहुत कम कुछ दे रहे हो. इनएडिक्वेट का मतलब जो उसकी जो वैल्यू है उससे बहुत कम कुछ दिया और सामने आपको बहुत कुछ मिला, दैट इज इनएडिक्वेट. और विदाउट कंसिडरेशन मतलब आपने कुछ दिया ही नहीं और आपको कुछ मिला. देखो मनी तो विदाउट कंसिडरेशन ही मिलते हैं. तो कोई તમને પૈસા આઈને ગિફ્ટમાં આપી જાય કે લે 50,000 लाख, ओके, तो विदाउट कंसिडरेशन आपको पैसा मिलता है. या तो फिर आपको कोई प्रॉपर्टी मिलती है, वो कैसे मिलती है, मतलब ये मनी तो हमेशा आपको कैसे मिलेंगे, यू विल ऑलवेज रिसीव द मनी विदाउट कंसिडरेशन.
मनी तो आपको कोई आके मतलब आके कोई आपको पैसों की गिफ्ट देता है, तो it is called the money received without consideration. So suppose if you receive the property, okay, just a minute. एक मिनट होल्ड कर दीजिए. Just wait.
Can you see the screen? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So see, suppose if you are receiving, no, see when this section is applicable. Suppose if you are an individual or HUF, and if you are receiving money without consideration, देखो money आपको कैसे मिलते हैं? If you are receiving money without consideration, okay, या तो फिर आपको प्रॉपर्टी मिलती है विदाउट कंसिडरेशन, या तो आपको यू आर पेइंग द कंसिडरेशन बट विच इज इनएडिक्वेट. ओके, तो इफ यू आर रिसीविंग, देखो मनी में कंसिडरेशन नहीं होता है, मनी यू आर रिसीविंग ऑलवेज विदाउट कंसिडरेशन, देन इट इज ट्रीटेड एज अ गिफ्ट. और सपोज इफ यू रिसीव a property without consideration or property for a consideration which is inadequate. देखो अगर ऐसा कुछ आपको मिल रहा है और आप कौन हो, यू आर आइदर इंडिविजुअल और HUF, या तो आप इंडिविजुअल हो या तो HUF हो, और इफ यू आर रिसीविंग मनी विदाउट कंसिडरेशन और इफ यू आर रिसीविंग द प्रॉपर्टी फॉर अ कंसिडरेशन विच इज इनएडिक्वेट. तो ये सबको हम दूसरी लैंग्वेज में बोले, सिंपल लैंग्वेज में, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? गिफ्ट. So suppose if you are receiving the gift, okay, then the gift is taxable. Gift is taxable and it will be always taxable. In which here it will be taxable as your income from other sources. Okay, so one thing may be clear in your mind. Let's see here what is taxable. Here the taxable, देखो आप कौन हो? If you are the assessee, तो कौन कैसे टाइप के assessee हो? या तो आप इंडिविजुअल हो, ओके, या तो फिर आप HUF हो. आपको क्या मिलता है गिफ्ट में? यू आर रिसीविंग आइदर मनी, यू आर रिसीविंग आइदर मनी, ओके, और ये मनी हमेशा आपको कैसे मिल रहा है? यू आर रिसीविंग द मनी विदाउट कंसिडरेशन. आपको ये मनी विदाउट कंसिडरेशन मतलब आपने कुछ नहीं किया और आपके कोई आपको पैसा देता है. ओके, सो दैट इज कॉल्ड मनी विदाउट कंसिडरेशन. और इफ यू आर रिसीविंग द प्रॉपर्टी, ओके, तो प्रॉपर्टी आपको कैसे मिलती है? या तो आपको प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन मिलता है, मतलब आपको आके कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट में देके जाता है, ओके, तो विदाउट कंसिडरेशन, या तो फिर आप प्रॉपर्टी की प्राइस पे करते हो, बट दैट प्राइस विच यू आर पेइंग इज मच लेसर देन इट्स वैल्यू. ओके, तो दैट इज कॉल्ड द इनएडिक्वेट कंसिडरेशन. इनएडिक्वेट कंसिडरेशन. तो अगर आपको मनी और प्रॉपर्टी मिलता है तो मनी हमेशा आपको विदाउट कंसिडरेशन ही मिलता है. ओके, मनी आपको हमेशा विदाउट कंसिडरेशन ही मिलता है, और अगर आपको प्रॉपर्टी मिलती है तो प्रॉपर्टी या तो विदाउट कंसिडरेशन या तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन से आपको मिलता है. और आप कौन हो? या तो इंडिविजुअल हो या HUF हो. इफ यू रिसीविंग दिस, देन दिस इज ट्रीटेड एज अ गिफ्ट एंड द गिफ्ट विल बी टैक्सेबल in your hand. Okay, and it will be taxable under, in each year it will be taxable under their income from other sources. So this is what I have discussed with you so far. Okay, now यहाँ आपको क्या मिलने पर टैक्स लगता है, मतलब what is taxable? Either if you receive the money, money तो आप सबको पता है कि money includes the cash, check, draft, okay, Indian currency, foreign currency, whatever you are receiving. तो ये money आपको गिफ्ट में मिल रहे तो it is taxable. और suppose if you receive the property, यहाँ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट इज प्रॉपर्टी. सपोज इफ यू रिसीव द प्रॉपर्टी, देन इफ यू रिसीव द प्रॉपर्टी, देन प्रॉपर्टी इज आल्सो टैक्सेबल. ओके, तो प्रॉपर्टी कब टैक्सेबल होगी? अंडर दिस हेड. व्हेन द प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल अंडर दिस हेड, द प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल अंडर दिस हेड. देखो प्रॉपर्टी दो टाइप की हो सकती है. इफ यू आर रिसीविंग द प्रॉपर्टी मे बी अ मूवेबल प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी मे बी अ मूवेबल प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी में भी है इमूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है,
तो अगर आपको प्रॉपर्टी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिलती है तो टैक्सेबल, और मनी अगर आपको मिलते हैं तो मनी आई टोल्ड यू वेदर इट इज अ कैश ड्राफ्ट ओके वॉट एवर इट इज ओके कैश ड्राफ्ट ये सब आपको रिसीव हो रहा है तो दैट इज टैक्सेबल ओके चेक और मूवेबल. तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट दैट व्हाट इज मूवेबल प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी. मनी तो आपको समझ में आ गया बट व्हाट इज मूवेबल प्रॉपर्टी. देखो एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड. यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी का एक अलग मीनिंग है ओके यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट. मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब ओनली दैट मूवेबल प्रॉपर्टी विच आर द कैपिटल असेट. कौन सी मूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ टैक्सेबल होती है अगर आपको गिफ्ट में मिलती है तो ओनली दोज मूवेबल प्रॉपर्टी विच आर दी कैपिटल असेट. ओके यहाँ मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में क्या आता है व्हाट इज मूवेबल प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स सपोज इफ यू रिसीव अ शेयर्स और सिक्योरिटीज ओके शेयर्स और सिक्योरिटीज पेंटिंग्स drawings sculpture any other archaeological collection bullion and jewelry of gold, silver or any other precious metal. तो मूवेबल प्रॉपर्टी में आपको सिर्फ इतनी चीजें मिलती है तभी टैक्सेबल होता है. इसका फोटो की सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है. वॉइस नहीं आ रही और ये स्क्रीन भी गायब हो गई. ठीक है. बस सर चले गए. हेलो हेलो मैं यहाँ Yes, पे sir. हूँ ठीक है. I was teaching from last 10 minutes and when I have asked this question then I have realized that no one has answered and I am out of the team और मैं ऐसे अकेला ही बोल रहा हूँ कोई अटेंड नहीं करने वाला है ऐसा सिचुएशन हुआ. तो 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ मैंने एक क्वेश्चन पूछा तब मुझे पता चला कि सामने कोई नहीं मैं अकेला बोल रहा हूँ. जस्ट वेट नाउ 15 મિનિટ મારી ફોકટમાં ગઈ યાર આજે યાર ટીમ્સ ના લીધે. ના સર અમે ભણ્યા.
તમને સંભળાયું? આ છેલ્લે મેં તમને ભણાવ્યું એ हाँ सर यस Yes, सर sir. हाँ सर Yes, sir. પ્રીશિયસ મેટલ વાળું. ભણા આપને? बुलियन ज्वेलरी गोल्ड એ બધું હા, તમે ગોલ્ડ લોકો પ્રીશિયસ મેટલ વાળું. हाँ हाँ બેસિક કીધું સર તમે सर फिर से रिपीट कीजिए ना, नेटवर्क की वजह से नहीं सुनाई दिया था। ये दिख रहा है अभी आपको स्क्रीन बेटा? यस सर यस Yes, सर sir. हाँ सर। ओके, देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ. सपोज इफ आई एम रिसीव, देखो ये सेक्शन किसके लिए है? इट इज फॉर द इंडिविजुअल एंड एचयूएफ. नाउ सपोज बीइंग अ इंडिविजुअल इफ यू रिसीव द मनी और बीइंग अ एचयूएफ यू रिसीव द मनी, और वो कैसे मिल रहा है आपको मनी? विदाउट कंसिडरेशन, देन इट इज टैक्सेबल. सेम वे अगर आपको प्रॉपर्टी मिल रहा है, ओके, सपोज इफ यू आर रिसीविंग द प्रॉपर्टी, okay, without consideration or for inadequate consideration, then it is taxable. तो यहाँ मनी में क्या आता है? तो मनी तो यू नो दैट इट इज अ कैश, बैंक, मतलब ड्राफ्ट, चेक से ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मोड से ट्रांसफर हुआ, ऐसे करके आपको मनी मिल रहा है, तो वो टैक्सेबल होगा. और प्रॉपर्टी होगा, तो प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है. प्रॉपर्टी इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी. Suppose if you receive the movable property or immovable property, it is taxable. But we must know that what is movable property. तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी है कि मूवेबल प्रॉपर्टी में अगर आपको देखो, जो मूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल असेट है वही टैक्सेबल होती है. और which movable assets are treated as a capital asset in the income tax act? The following movable property, that shares and securities, paintings, drawings, sculptures, any other archaeological collection, bullion और ज्वेलरी, इतनी मूवेबल प्रॉपर्टी को ही क्या मतलब अगर आपको गिफ्ट में मिलती है तो वो टैक्सेबल होगी. सपोज कोई आके आपको कार गिफ्ट में देता है, मोबाइल गिफ्ट में देता है, ये सब या तो फिर आपको कोई आके लैपटॉप गिफ्ट में देता है, ओके, तो ये सब टैक्सेबल होगा? आंसर इज नो, because this is not a movable property as per the definition given in the income tax. Only these movable properties are taxable. If you receive as a gift, then only these movable properties are taxable. Other movable property are not taxable. So you should take the snap of this particular point because it is not given in your मटीरियल में कहीं पे व्हाट इज मूवेबल प्रॉपर्टी वो नहीं लिखा है, इसीलिए मैंने यहाँ आपको हाईलाइट कर दिया कि इतनी मूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपको मिलती है तो ही टैक्सेबल होगा. इसके अलावा कोई मूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपको मिलती है तो इट इज नॉट टैक्सेबल. हैव यू टेकन द स्नैप फॉर द सेम? हेलो, यस सर सर. यस सर सर देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या मिलता है तो टैक्सेबल होगा. तो सपोज इफ यू रिसीव इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? देखो ओनली दोज इमूवेबल प्रॉपर्टी विच आर कैपिटल एसेट आर टैक्सेबल. ओके, इमूवेबल प्रॉपर्टी आप किसको कहोगे? व्हाट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी? इमूवेबल प्रॉपर्टी हियर फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन मीन्स ओनली टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, either a land and building, या तो फिर both, land and building both. Okay, these are treated as the immovable property for this section. इसका भी आप फोटो खींच लीजिए, ये यही प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आता है. Okay, what is movable property that I have explained you? This is the movable property और this is immovable property. Okay, इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आता है? लैंड, बिल्डिंग या बोथ. ओके, तो अगर आपको क्या क्या चीजें गिफ्ट में मिलेगी तो टैक्सेबल होगा? तो एक तो आपको ये कैश, चेक, ड्राफ्ट, ओके, और बैंक ट्रांसफर, ये कोई भी तरीके से अगर आपको क्या मिलता है, यू आर रिसीविंग दी मनी, देन इट इज टैक्सेबल. सपोज इफ यू आर रिसीविंग दी मूवेबल प्रॉपर्टी, अभी मूवेबल प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया किसको मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं? ओनली Yes, दैट sir. वन असेट व्हिच आई हैव रिटन, दैट असेट्स आर ट्रीटेड एज अ मूवेबल प्रॉपर्टी. ओके, तो वो 7 असेट्स को मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं. ओके, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ओके, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, बुलियन, ज्वेलरी, प्रीशियस मेटल. ओके, तो इसको ही मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं. और जो कैपिटल एसेट है वही अगर आपको मिलता है तो टैक्सेबल होता है. और इफ यू रिसीव द इमूवेबल प्रॉपर्टी, ओके, देन इट इज टैक्सेबल. और इमूवेबल प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? यू कैन कॉल इट एज इमूवेबल प्रॉपर्टी टू द लैंड
और टू द बिल्डिंग और टू दी बोट। अगर इतनी चीजें ही आपको गिफ्ट में मिलती है तो ये सेक्शन अट्रैक्ट होगा। और असेसी कौन होना चाहिए? असेसी मस्ट बी आइदर इंडिविजुअल और एचयूएफ। देखो एक कंपनी और फर्म को ये सब गिफ्ट में मिलता है तो टैक्सेबल होता है, बट नॉट अंडर दिस सेक्शन, इट इज टैक्सेबल अंडर एनी अदर हेड, बट नॉट इन दिस हेड। ये हेड में गिफ्ट टैक्सेबल किसके लिए होता है? ये हेड में गिफ्ट टैक्सेबल सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए होता है। ओके, तो सपोज इफ यू आर अ इंडिविजुअल और इफ यू आर एचयूएफ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है? रिसिप्ट ऑफ मनी और प्रॉपर्टी। अगर आपको मनी गिफ्ट में मिलते हैं या तो फिर प्रॉपर्टी मिलती है, ओके, बाय द इंडिविजुअल एचयूएफ फॉर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन, या तो आपने उसका बहुत कम प्राइस पे करके आपने प्रॉपर्टी लिया है, या तो फिर आपको मुफ्त में कुछ मिला है, देन इट इज टैक्सेबल। देखो ये सेक्शन को हम दूसरे वर्ड में क्या कहेंगे? गिफ्ट। ओके, नाउ एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 56 सबसेक्शन 2x, मतलब ये गिफ्ट से रिलेटेड होंगे। कब एप्लीकेबल होगा? The section 56(2)(x) is apply only if the gift received is a capital asset for the recipient। मतलब जो रिसीव कर रहा है उसके लिए अगर वो कैपिटल असेट बन रही है तो टैक्सेबल होगा। वो कैपिटल असेट कब बनेगी? व्हेन इट इज फॉलिंग इन दिस कैटेगरी। देखो मूवेबल प्रॉपर्टी में यही मूवेबल प्रॉपर्टी असेसी के लिए कैपिटल असेट बन सकती है, तो यही टैक्सेबल होगा। और इमूवेबल प्रॉपर्टी में यही दो असेट उसके लिए कैपिटल असेट बन सकती है, तो वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, लैंड या बिल्डिंग। तो इसके अलावा की कोई भी प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट में मिलती है तो टैक्सेबल नहीं होगा। सपोज इफ यू आर रिसीविंग समथिंग, ओके, it would not apply if the property received is a SIT, RM और CS। SIT का फुल फॉर्म होता है स्टॉक इन ट्रेड, RM मतलब रॉ मटेरियल और CS मतलब कंज्यूमेबल स्टोर्स। ओके, तो सपोज इफ यू आर रिसीविंग समथिंग फ्रॉम समवन एंड इफ इट इज अ रॉ मटेरियल फॉर यू, if it is a stock in trade for you, or if it is the consumable stores for you, though it is falling here। देखो यहाँ में ये 6-7 आइटम लिखी यहाँ पे, या तो फिर ये 2 आइटम लिखी, वो आपको गिफ्ट में मिलता है, लेकिन वो गिफ्ट में मिलने के बाद भी आपके लिए वो स्टॉक इन ट्रेड बनने वाला है, या तो फिर आपके लिए कंज्यूमबल स्टोर बनने वाला है, या तो फिर रॉ मटेरियल बनने वाला है, तो इस आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगा। सपोज मैं ज्वेलर हूँ और मुझे आके कोई बुलियन गिफ्ट में देता है, तो ये बुलियन मतलब आके देता है, बुलियन मतलब वो गोल्ड का जो बिस्किट आता है वो, ओके, अनप्रोसेस्ड जो होता है जिसमें से ज्वेलरी बनती है, तो वो मेरे लिए क्या हुआ? बुलियन। बुलियन को मैं प्रोसेस करके उसमें से ज्वेलरी बनाने वाला हूँ। अगर कोई आके मुझे बुलियन गिफ्ट में देता है, बुलियन इज अ रॉ मटेरियल फॉर मी, इट इज नॉट टैक्सेबल इवन दो आई हैव रिसीव्ड एज अ गिफ्ट। हाँ, वो इसकी इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगी कि बुलियन 0 માં મળી તું પછી તમે વેચો લાખ રૂપિયામાં એમાંથી જ્વેલરી બનાવીને, તો લાખ રૂપિયા તમારી બિઝનેસ ઇન્કમ કહેવાય, ત્યાં ટેક્સેબલ છે। સપોઝ आई एम अ शेयर ब्रोकर एंड समवन गिव्स मी अ शेयर्स, तो अगर मुझे कोई गिफ्ट शेयर्स में देता है तो मैं क्या कर दूंगा? उसको आज नहीं तो कल बेच दूंगा, तो इट इज अ स्टॉक इन ट्रेड फॉर मी, तो इट इज नॉट टैक्सेबल फॉर मी। ओके, तो कोई भी चीज आपके लिए या तो स्टॉक इन ट्रेड या रॉ मटेरियल है और वो आपको गिफ्ट में मिलता है, आपका बिजनेस ऐसा है और आपको वो चीज गिफ्ट में मिलती है, तो नॉट टैक्सेबल। So when it is taxable, suppose if you are receiving something and if it is you have received this thing and that item whatever you have received is a capital asset for you and it is not a stock in trade for you, it is not a consumable store for you, it is not a it is not a consumable store, it is not a stock in trade, or it is not a raw material for you, then it is taxable। देखो, thus only transfer of the capital asset for inadequate or without consideration would attract this section। मतलब अगर आप सपोज समझ लो ज्वेलरी बाय करते हो या प्रॉपर्टी बाय करते हो, 1 लाख રૂપિયાની જ્વેલરીની કિંમત છે અને તમે 1 લાખ રૂપિયા ચૂકવ્યા, તો it is not a gift, but suppose inadequate consideration पे करोगे तो it is a gift। लाइक सपोज 1 लाख का ज्वेलरी आपके फ्रेंड का शॉप है, वो बोलता है हेमंत पे लोन 10,000 आप इनकम ले जाओ ज्वेलरी, ओके, तो वहां पे मेरे को 90,000 का डिस्काउंट मिला, इट इज इनएडिक्वेट कंसीडरेशन, सो इन दैट केस इट इज टैक्सेबल। ओके, लेकिन 1 लाख ની કિંમત છે ને 1 લાખ આપીને હું બાય કરું તો ઇટ ઇઝ નોટ અ ગિફ્ટ, તો એ તો મારા માટે ખરીદી કહેવાય, તો ખરીદી ટેક્સેબલ નહીં થાય। એ ક્યારે ટેક્સેબલ થશે? કે જ્યારે કોઈ પણ પ્રોપર્ટી જેને કેપિટલ એસેટ કહેવાય એ વસ્તુ તમને યા તો તમને ઇનએડિક્વેટ કન્સિડરેશન मतलब બહુ જ ઓછું કન્સિડરેશન પે કરીને તમને મળે છે। આ પછી પેલા જ્વેલરી વાળો મને કે હેમંતભાઈ મફત લઈ જાઓ, मतलब विदाउट कंसिडरेशन अगर मुझे कुछ मिलता है तो वो टैक्सेबल होगा, अदरवाइज मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी आर नॉट टैक्सेबल। ठीक है, नाउ सी यहाँ टैक्सेबिलिटी बताइए, लेकिन उससे पहले हम
एक गिफ्ट, कौन सी गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगी, विच गिफ्ट्स आर नॉट टैक्सेबल, वो पहले डिस्कस करते हैं, फिर वो तीनों प्रॉपर्टी को मतलब तीनों आइटम को वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है। व्हेन द गिफ्ट इज नॉट टैक्सेबल, देखो गिफ्ट कौन सी केस में, मतलब आपको कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी या मनी आपको विदाउट कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन से मिला है, फिर भी कोई केस, कुछ कुछ केस ऐसे जिसमें वो टैक्सेबल नहीं होता। तो देखो, you should remember that when the following gifts are not taxable irrespective of their amount, એટલે કેટલું પણ amount તમને મળી હોય, but suppose if you have received the gift and gift is falling in this category, ये सब कैटेगरी में फॉल होती है गिफ्ट, ये जो ग्रीन किया हुआ है, then the gift is not taxable, okay। तो see, when the gift is not taxable, suppose if you receive the gift from your relative, okay, अगर आपको रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है तो टैक्सेबल नहीं होगा। अभी रिलेटिव किसको कहोगे, तो ये रिलेटिव का डेफिनेशन दिया हुआ है, हम बाद में देखते हैं, ओके। इतने ही लोगों को रिलेटिव कहते हैं, और इन लोगों से अगर आपको गिफ्ट मिला तो गिफ्ट नॉट टैक्सेबल होगा, गिफ्ट विल नॉट बी टैक्सेबल इवन दो द अमाउंट व्हाट एवर इज द अमाउंट 5 करोड़ 10 करोड़ के ना हो, बट इफ यू हैव रिसीव्ड द गिफ्ट फ्रॉम योर रिलेटिव इट इज नॉट टैक्सेबल। सेम वे सपोज आप किसी से भी आपको गिफ्ट मिलती है, रिलेटिव के अलावा किसी से भी, but when you receive the gift, you have received that gift on occasion of your marriage, okay। आपके मैरिज के ओकेजन पे आपको कोई गिफ्ट देता है, वो रिलेटिव है या नहीं है, ओके, बट इफ यू रिसीव द गिफ्ट ऑन ओकेजन ऑफ योर मैरिज इट इज नॉट टैक्सेबल, ओके। सपोज इफ यू रिसीव द गिफ्ट अंडर द विल और इनहेरिटेंस, ओके, तो इनहेरिटेंस मतलब आप તમને વારસામાં गिफ्ट મળે और बाय वे ऑफ विल, ओके, कोई વારસો કરી આપ્યો, તમારા ફાધર જે તમને વારસામાં આપી કે ભાઈ આ પ્રોપર્ટી મારી ડેથ પછી તારી થઈ જશે, તો ધેટ પ્રોપર્ટી ઇઝ કોલ્ડ ડેથ પછી કે જીવતા હોય ત્યારે પણ લખી આપે આ પ્રોપર્ટી તારી, તો ઇટ ઇઝ નોટ ટેક્સેબલ। સપોઝ ઇફ યુ રિસીવ ધ गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव फ्रॉम ऑन ओकेजन ऑफ योर मैरिज और अंडर द विल और इनहेरिटेंस और अंडर द कंटेम्पलेशन ऑफ द डेथ ऑफ पेई और डोनर, मतलब कोई ऐसा लिख के मर गया कि मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी उसकी, वो जिंदा है तब तक उसने आपको प्रॉपर्टी नहीं दिया, मरते टाइम पे उसने कॉन्टेम्पलेट किया, वो लिख के मर गया है कि मेरे मरने के बाद, भले वो आपका रिलेटिव नहीं है, वो थर्ड पार्टी, सपोज कोई फ्रेंड है मेरा, उसने उसकी डेथ हो गई और वो मरते टाइम पे लिख के गया कि भाई ये प्रॉपर्टी हेमंत की, तो वो मुझे मिली, तो इट इज आई हैव रिसीव्ड ऑन कंटेम्पलेशन ऑफ द डेथ ऑफ पेयर। पे करने वाला कौन है, वो है, डोनर कौन है, वो है, और मरते टाइम पे उसने लिख के गया कि भाई ये प्रॉपर्टी इसको दे देना, और मुझे ऐसी कोई प्रॉपर्टी मिलती है तो वो नॉट टैक्सेबल हो जाएगी। सपोज मुझे कोई लोकल अथॉरिटी से प्रॉपर्टी मिलती है, गिफ्ट मिलती है, नॉट टैक्सेबल होती है। सपोज आई एम रिसीविंग दी गिफ्ट फ्रॉम दी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और चैरिटेबल ट्रस्ट विच इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 1023C, मतलब इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो, ऐसे कोई ट्रस्ट से अगर मुझे कोई गिफ्ट मिलती है तो वो गिफ्ट नॉट टैक्सेबल होगी, ओके, दैट गिफ्ट विल नॉट बी टैक्सेबल, ओके। Now suppose if I receive the gift from the transaction which is not regarded as transfer, देखो बहुत सारे ट्रांजेक्शन इनकम टैक्स एक्ट में ट्रांसफर नहीं कहे जाते, लाइक अमालगमेशन होता है, मर्जर होता है, सब्सिशन होता है, ये सब ट्रांसफर होते हैं, तो ये इसको ट्रांसफर इनकम टैक्स में नहीं मानते। तो वो सब सिचुएशन में आपको कुछ मिला, सब कुछ सब्सिशन में, इट इज नॉट ट्रीटेड एज अ गिफ्ट, और इसको नहीं है, ये देखो व्हाट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, तो हम कैपिटल गेन वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सेम वे अगर देखो ट्रांसफर बिटवीन द होल्डिंग कंपनी एंड इट्स होल्डी ओन सब्सिडरी, एचसी मतलब होल्डिंग कंपनी एंड डब्ल्यूएस मतलब होल्डी ओन सब्सिडरी, और ट्रांसफर बाय सब्सिडरी कंपनी टू इट्स होल्डी ओन 100% इंडियन होल्डिंग कंपनी, मतलब होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को कुछ ट्रांसफर करती है और सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी को कुछ ट्रांसफर करती है, और ये दोनों के बीच में अगर विदाउट कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन कोई ट्रांजेक्शन होता है तो इट इज नॉट ट्रीटेड एज अ गिफ्ट, ओके। जो ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर नहीं माना जाता और ऐसे ट्रांजेक्शन में असेट का ट्रांसफर हुआ है तो उसको भी गिफ्ट नहीं कहेंगे। अगर आपको कोई ट्रस्ट से, ओके, इंडिविजुअल ने कोई ट्रस्ट क्रिएट किया है, ये हुआ चैरिटेबल ट्रस्ट, प्राइवेट ट्रस्ट भी होता है, सपोज मैं मरते टाइम पे ट्रस्ट बना के गया कि मेरी प्रॉपर्टी ये ट्रस्ट को दी दे जाएगी, और ये ट्रस्ट जो है वो मेरा फ्रेंड मैनेज करेगा, और वो ट्रस्ट में से जो भी इनकम आएगी मेरे बच्चों को मिलेगी। तो अगर मैंने मेरे फ्रेंड को पूरी प्रॉपर्टी दे दी, ओके, कि ये प्रॉपर्टी तो संभालना, और उसके बाद उसमें से जो भी इनकम आती है विद दैट मनी यू
मैनेज द लाइफ ऑफ माय चिल्ड्रन। तो ऐसे कोई प्राइवेट ट्रस्ट आपने क्रिएट किया है। चैरिटेबल ट्रस्ट इज फॉर चैरिटी, फॉर पब्लिक एज अ होल। लेकिन अगर आपने ट्रस्ट क्रिएट किया है कुछ सिलेक्टेड लोगों के बेनिफिट के लिए, दैट इज कॉल्ड द प्राइवेट ट्रस्ट। इफ यू हैव क्रिएटेड द प्राइवेट ट्रस्ट and under the private trust, suppose someone has created the private trust and under that trust they have given the property to you, then it is also not treated as your gift. Okay, तो अगर ये कोई भी सिचुएशन में सपोज आपको गिफ्ट मिलता है चैरिटेबल ट्रस्ट से, तो भी नॉट टैक्सेबल। सपोज लोकल अथॉरिटी लाइक वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुझे एक जमीन का टुकड़ा फ्री में दे देता है कि रेमन पे राखो लो, सपोज आई एम रिसीविंग, दैट इज नॉट टैक्सेबल। सपोज वन इन केस ऑफ कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ पेयर, अगर कोई मर गया, मरते टाइम पे लिख के गए प्रॉपर्टी हेमंत भाई की आप पहुंची हमारी पास आटला रुपया पड़े थे हेमंत भाई, इफ आई रिसीव द सेम इट इज नॉट टैक्सेबल बिकॉज आई हैव रिसीव्ड ऑन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ पेयर। सपोज बाय विल और इनहेरिटेंस, बराबर મારા પપ્પાએ વારસ કરી છે ને વારસામાં મને if I have received this property it is not taxable। सपोज आपके मैरिज के टाइम पे अगर आपको कोई भी गिफ्ट मिलती है, प्रॉपर्टी है, मनी है, मूवेबल है, इमूवेबल है, मैरिज के टाइम पे मिलता है, नॉट टैक्सेबल। और if you receive the gift from your relative then it is not taxable। now this question arises that who is relative, कारण કોઈની પણ પાસેથી gift મળશે તમે કહી દેશો કે આ તો મારો રિલેટિવ છે, તો નોટ ટેક્सेबल થઈ જશે। તો ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ जिसने भी बनाया he is very smart, he has defined the relative also कि रिलेटिव किसको कहेंगे। ओके, तो he has defined the relative also, तो who is treated as a relative। तो यहाँ पे रिलेटिव में कौन आता है, देखो इंडिविजुअल के लिए रिलेटिव कौन, देखो ये सेक्शन किसको लागू पड़ता है, दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली टू दी ओके इंडिविजुअल और एक्चुअल। ओके, ये तो आपको पता है। तो इंडिविजुअल के लिए who is treated as a relative, for individual suppose me and you are individual, so for us who will be treated as a relative, क्योंकि रिलेटिव से मिलने वाला गिफ्ट एग्जम्प्ट होता है, नॉट टैक्सेबल होता है। तो who is the relative, तो जो कोई आपको मिलता है रास्ते में वो रिलेटिव नहीं होता, रिलेटिव इज डिफाइंड हियर। ओके, रिलेटिव हियर मींस रिलेटिव यहाँ कौन इंक्लूड होता है कि कोई भी इंडिविजुअल होता है उसका स्पाउस, ब्रदर और सिस्टर। ओके, स्पाउस मतलब हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, दोनों एक दूसरे के स्पाउस कहे जाते हैं। ठीक है, तो सपोज इफ यू रिसीव a gift from your spouse, okay, suppose if you receive the gift from your spouse, okay, मतलब हस्बैंड वाइफ से गिफ्ट रिसीव करता है, वाइफ हस्बैंड से रिसीव करती है, they are treated as a relative as per this definition। आपका खुद का ब्रदर, आपकी खुद की सिस्टर, okay, so they are treated as a relative। so relative includes what, your spouse, your brother, your sister are a relative। इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल का स्पाउस, ब्रदर और सिस्टर रिलेटिव है उसके लिए। फिर ब्रदर और सिस्टर ऑफ स्पाउस, मतलब आपके स्पाउस के जो भी ब्रदर और सिस्टर है, मतलब મારી વાઈફ છે એના ભાઈ અને બેન પણ મારા રિલેટિવ કહેવાય છે। ઓકે, મારી સ્પાઉસ એટલે મારી વાઈફ, મારો બ્રધર અને મારા સિસ્ટર તો મારા રિલેટિવ છે જ, પણ મારે સ્પાઉસના પણ બ્રધર અને સિસ્ટર છે, they are treated as a relative। ઓકે, तो ब्रदर और सिस्टर ऑफ दी स्पाउस, स्पाउस के जो ब्रदर और सिस्टर है, मतलब देखो सपोज ये मिस्टर एक्स है, ओके, तो मिस्टर एक्स की जो वाइफ है मिसिस एक्स, ओके, तो मिसिस एक्स उसके लिए रिलेटिव है। मिस्टर एक्स का जो ब्रदर है वो उसके लिए रिलेटिव है। मिस्टर एक्स का जो सिस्टर है वो मिस्टर एक्स के लिए रिलेटिव है। फिर मिस्टर एक्स की जो वाइफ है मिसिस एक्स, तो मिसिस एक्स का जो ब्रदर है वो मिस्टर एक्स के लिए, में हम एक्स के लिए किसको रिलेटिव गिनते हैं वो देखते हैं। तो मिसिस एक्स का ब्रदर, मिसिस एक्स की सिस्टर, ओके, गुजराती में આપણે કહીએ તો સાળો અને સાળી। ઓકે, ત્યાર પછી એની जो सिस्टर હોય, એટલે સપોઝ સ્પાઉસ के लिए हस्बैंड के जो ब्रदर और सिस्टर है, ओके, એટલે એની નણંદ હોય કે જીજાજી હોય, નણંદ કે નંદોઈ, ये પણ रिलेटिव કહેવાય। ओके, तो दे आर ट्रीटेड एज अ रिलेटिव। तो आपके खुद के ब्रदर और सिस्टर और आपका जो भी लाइफ पार्टनर है उसके ब्रदर और सिस्टर वो आपके रिलेटिव है। ओके, फिर आप ब्रदर और सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ योर पेरेंट्स, ओके, मतलब आपके पेरेंट्स, आइदर ऑफ योर पेरेंट्स मतलब आपकी जो मदर है और आपके जो फादर है, ओके, मदर और फादर दोनों के ब्रदर और सिस्टर, दोनों के ब्रदर और सिस्टर, ओके, मतलब मदर के ब्रदर और सिस्टर એટલે મામા અને માસી અને ફાધરના બ્રધર સિસ્ટર,
એટલે કાકા અને ફોઈ both are treated as a relative form. Okay. Or any lineal ascendant or descendant of the spouse or individual or spouse of the individual. Okay. मतलब यहाँ पे क्या बोला, एनी लिनियल एसेंडेंट और डिसेंडेंट. सपोज ये मिस्टर एक्स है, तो मिस्टर एक्स के लिनियल एसेंडेंट कौन हो गए? मिस्टर एक्स के लिनियल एसेंडेंट मतलब उसका फादर मिस्टर एक्स के ग्रैंडफादर. ओके, ग्रैंडफादर. तो ये सभी ऊपर वाले जो है लिनियल एसेंडेंट है. और डिसेंडेंट मिस्टर एक्स का सन का सन, ग्रैंडसन. ओके, तो ये सभी लिनियल डिसेंडेंट है. मतलब आपके खुद के लिनियल एसेंडेंट और आपकी जो स्पाउस है उसके लिनियल एसेंडेंट और डिसेंडेंट. ओके, मतलब તમારા लिनियल एसेंडेंट છે. ઓકે, मतलब તમારા દાદા દાદી પપ્પા મમ્મી બધા જ પપ્પા મમ્મીની વાત જ નથી થઈ અહીંયા. આપણે वी आर टॉकिंग अबाउट दी एसेंडेंट. एंड एसेंडेंट में सिर्फ मेल कैंडिडेट आते हैं, डिसेंडेंट में फीमेल आ सकते हैं. हमारा तो एसेंडेंट फादर, ग्रैंडफादर और वो सब, और डिसेंडेंट सन, डॉटर, ये सब डिसेंडेंट है. ठीक है. तो ये आपके खुद के फादर, ग्रैंडफादर, आपके खुद के सन और डॉटर वो आपके रिलेटिव है. आपके स्पाउस के भी जो फादर है, तो हमारा ससरा हो कि ससराना मतलब फादर हो, तो दे आर ऑल्सो रिलेटिव. और डिसेंडेंट, तो डिसेंडेंट तो कॉमन ही रहेंगे हस्बैंड और वाइफ के. तो તમારો સન છે જ વાઇફનો સન હોય, કોઈ કેસમાં ના પણ હોય એવું બને. ડાયવોર્સ થયેલો કેસ હોય તો વાઇફ બીજા પહેલા ઘરેથી છોકરું લઈને આવી હોય तो એને रिलेटिव કહેવાય स्टेप सन ने. तो आंसर इज यस कि आपके स्पाउस के भी जो डिसेंडेंट है दे आर ट्रीटेड एज अ रिलेटिव. ओके, और आपके खुद के जो है वो आर दैट आर आल्सो ट्रीटेड एज अ रिलेटिव. तो रिलेटिव हियर मींस व्हाट, देखो आप, और देखो यहाँ लास्ट में ऐसा लिखा है स्पाउस ऑफ अबाउ पर्सन. इसमें जितने भी लोग लिखे गए सबके स्पाउस भी आपके रिलेटिव है. सपोज मैंने यहाँ बताया ब्रदर और सिस्टर, आपका ब्रदर तो आपका रिलेटिव है, ब्रदर की वाइफ भी रिलेटिव. ये लास्ट लाइन क्या कहती है, स्पाउस ऑफ एनी पर्सन रिफर्ड अबाउट. मतलब ब्रदर तो आपका रिलेटिव है, ब्रदर की वाइफ आपकी रिलेटिव है. सिस्टर तो आपकी रिलेटिव है लेकिन सिस्टर का हस्बैंड भी रिलेटिव है. ब्रदर और सिस्टर ऑफ स्पाउस, तो आपके स्पाउस के ब्रदर और सिस्टर जो है, आपकी वाइफ के ब्रदर और सिस्टर, वो तो आपके रिलेटिव है लेकिन उनके भी स्पाउस है. એટલે તમારો ભાઈ તો રિલેટિવ, તમારી વાઇફનો ભાઈ એ તમારો રિલેટિવ થયો, પણ એની વાઇફ પણ છે એ પણ તમારી રિલેટિવ કહેવાય. ओके, आपके ब्रदर के पेरेंट्स और सॉरी ब्रदर, आपके पेरेंट्स के ब्रदर और सिस्टर. ओके, तो आप सपोज मारा काका मारा रिलेटिव था, मारा फूई मारा रिलेटिव था. ओके, मारा मामा मारा रिलेटिव था અને મારા માસી મારા રિલેટિવ. પણ એમના જે સ્પાઉસ છે, એટલે મામાના વાઇફ મામી, કાકાના વાઇફ કાકી, ફુવાના ફુઈના હસબન્ડ ફુવા. ઓકે, so they are also treated as a relative. Okay, so all these are treated as a relative for the individual. Is it clear to everyone the definition? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so suppose if you receive the gift from relative, then it is not taxable. It is not taxable. Okay, तो अगर आपको रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है तो नॉट टैक्सेबल. लेकिन रिलेटिव किसको कहेंगे, तो सिर्फ इतने लोगों को रिलेटिव कहेंगे. ओके, सपोज इफ यू रिसीव द गिफ्ट ऑन ओकेजन ऑफ योर मैरिज, देखो मैरिज के ओकेजन पे किसी से भी गिफ्ट मिलता है नॉट टैक्सेबल. और आपको व्हील और इनहेरिटेंस से गिफ्ट मिलता है नॉट टैक्सेबल. ऑन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ पेयर इफ यू आर रिसीविंग द गिफ्ट नॉट टैक्सेबल. ऑन लोकल अथॉरिटी अगर आपको गिफ्ट मिलता है नॉट टैक्सेबल. फ्रॉम रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट इफ यू आर रिसीविंग नॉट टैक्सेबल. सपोज कोई प्राइवेट ट्रस्ट से गिफ्ट मिलता है तो भी नॉट टैक्सेबल. जो ट्रांसफर नहीं कहा जाता इनकम टैक्स में, ऐसे तरीके से कोई गिफ्ट मिलती है तो भी नॉट टैक्सेबल. और सपोज इफ यू रिसीव द गिफ्ट इज रिसीव्ड बाय द होल्डिंग ओन कंपनी फ्रॉम द सब्सिडरी, और सब्सिडरी हैज रिसीव्ड द गिफ्ट ऑफ होल्डिंग ओन होल्डिंग कंपनी, then it is not taxable. Okay, then it is not taxable. Is it clear? अगर ये तरीके से आपको गिफ्ट मिलती है by any of this mode, then the gift is not taxable. समझ में आया आप सबको ये? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Is the gift Yes, not sir. taxable? Okay. Now देखो आपको क्या चीजें मिलती है तो टैक्सेबल होता है. मैंने आपको 3 चीजें बताई. ओके, देखो पहले सबसे पहले हम देखते हैं मनी. ओके,
तो आपको मनी तो हमेशा विदाउट कंसिडरेशन ही मिलता है। मनी में इनएडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं होता। कोई तुमने पैसा आप है तो पैसा आप ही क्यों है, मैं थोड़ी इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है। मनी इज ऑलवेज रिसीव्ड बाय यू विदाउट कंसिडरेशन। ओके, मनी आपको हमेशा विदाउट कंसिडरेशन मिलता है। ओके, तो ही आप उसको क्या कहोगे, यू कैन कॉल इट एज अ गिफ्ट। ओके, मनी को गिफ्ट कब कहा जाएगा, व्हेन यू रिसीव द मनी। તમે કોઈના માટે કશું જ નથી કરીને તને આઈને પૈસા આપી જાય તો ઇટ ઇઝ અ ગિફ્ટ ફોર. ઓકે, so suppose if you receive the money without consideration, then when the money is taxable, okay, if you have received the money without consideration, then when the money is taxable, तो जितना भी taxable amount है और एक taxable amount का जो एग्रीगेट आप करते हो पूरे साल में लोगों से आपको गिफ्ट जो मिली है मनी के फॉर्म में, ओके, और ये इसका एग्रीगेट करते हो, इफ दिस एग्रीगेट इज एक्सीडिंग ₹50,000, एग्जैक्ट 50,000 है तो नॉट टैक्सेबल, 50,000 से कम है तो भी नॉट टैक्सेबल, लेकिन 50,000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल। और वो भी आपको क्या करना है, टोटल करना है, और वो भी कौन से वाली गिफ्ट मनी का जो टैक्सेबल है वो। ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज during the particular previous year, suppose say this is my previous year 2021-22, और ये previous year में मुझे मेरे फादर ने 1 लाख रुपया गिफ्ट दिया। किसने दिया, फादर ने। फादर हैज गिवन मी 1 लाख रुपीज एज अ गिफ्ट, ठीक है। देन माय वाइफ हैज गिवन मी 2 लाख रुपीज एज अ गिफ्ट, ओके। Then one of my friend has given the gift of ₹26,000, and one of my teacher has given me a gift of 28,000. Okay, तो आपको क्या करना है, ये सबका टोटल करना है, और उसमें से भी टोटल में क्या लोगे, ओनली टैक्सेबल अमाउंट। जो एग्जाम्प्ट है उसको निकाल दोगे, टैक्सेबल अमाउंट का टोटल करोगे, इफ द टोटल इज मोर देन 50,000 देन इट इज टैक्सेबल। नाउ यू कैन सी हियर आई हैव रिसीव्ड दिस मनी फ्रॉम माय फादर। फादर से लिया है वो टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि फादर, अभी आपको मैंने पढ़ाया कि इफ यू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम योर रिलेटिव नॉट टैक्सेबल, तो जो फादर से मिला है वो टैक्सेबल नहीं होगा, तो इसको निकाल दूंगा, ये एग्जम्प्ट है। ओके, वाइफ से मिला हुआ गिफ्ट, वाइफ स्पाउस इज अ रिलेटिव, उससे मिला है तो भी वो एग्जम्प्ट है, इसको भी निकाल दिया मैंने। अभी जो बाकी बचा उसका मैं टोटल करता हूँ। ओके, तो 26,000 एंड 28,000, देखो फ्रेंड से मिला टैक्सेबल होता है, टीचर से मिला टैक्सेबल होता है, तो 26,000 प्लस 28,000 करता हूँ, and if this total is say 54,000. Okay, so this 54,000 is more than 50,000, then answer is yes. So what will be the taxable amount? 54,000. Suppose समझ लो कि मेरे फ्रेंड ने सिर्फ मुझे 20,000 ही दिए होते, तो यहाँ टोटल कितना होता, टोटल विल बी ओनली कितना होता टोटल, 48,000। देखो 48,000 50,000 से कम है तो ये पूरा अमाउंट क्या हो जाता, नॉट टैक्सेबल। मतलब आपको क्या करना है, जितने लोगों से गिफ्ट मिली है वो भी कौन से फॉर्म में, मनी के फॉर्म में, वो सभी गिफ्ट को आप लिख दो, फिर यू फाइंड आउट कि क्या क्या टैक्सेबल है। जो एग्जम्प्ट है उसको निकाल दो, अभी जो टैक्सेबल है उसका टोटल करो, and if that total is more than 50,000 then it is taxable। अगर 50,000 से कम है तो क्या होगा, it will be not taxable, it will not be taxable। Understood all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Suppose if you have received the money, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, if you receive the cash, check, draft, if the total amount of money received from one or more person during the previous year is greater than 50,000, then whole amount is taxable। बट देखो अगर टोटल करते हो एंड इफ द मनी रिसीव्ड इज लेस देन 50,000, नथिंग इज टैक्सेबल। यहाँ आपको क्या करना है, देखो यू मस्ट नो, ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू डू दी टोटल फर्स्ट, क्योंकि टैक्स किस पे लगता है, टोटल पे। एक एक करके मत देखना, वो ये कैसे जो फादर थी મળ્યા એક્ઝામ, વાઇફ થી મળે એક્ઝામ, ફ્રેન્ડ થી મળે પણ ખાલી 20,000 થી 50 થી વધારે નથી એટલે એક્ઝામ, ટીચર થી મળે 28 50 થી ઓછા છે એટલે એક્ઝામ, એવું નથી કરવાનું। યુ આર સપોઝ ટુ ડુ ધી ટોટલ of all the taxable amount, and if that total is more than 50,000 then entire amount is taxable, and if that total is less than 50,000 nothing is taxable। If that total is exact 50,000 then also it is
not taxable, because here what is mentioned, if the total is greater than 50,000, then and then it is taxable. Underline this greater line, greater than 50,000 होगा तो ही taxable होगा. और दूसरा कौन सा वर्ड आपको अंडरलाइन करना है, you are supposed to do the total, and if the total is more than 50,000 then it is taxable, otherwise it is not taxable. ठीक है. Now suppose देखो आपको मिला क्या है, suppose the next item is a movable property. Suppose if you are receiving the movable property, okay, as a gift, तो देखो यहाँ दो तरीके हो सकते हैं. या तो कोई आपको मूवेबल प्रॉपर्टी आपको आके मुफ्त में देके जाता है गिफ्ट में, ओके, तो दैट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसीडरेशन. और एक दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि यू आर परचेसिंग द मूवेबल प्रॉपर्टी. देखो आप गिफ्ट नहीं ले रहे हो लेकिन परचेस कर रहे हो, एंड फॉर दैट यू आर पेइंग द कंसीडरेशन, ओके, और वो कंसीडरेशन आप इतना कम पे करते हो कि वो कंसीडरेशन इज लेस देन द मार्केट वैल्यू, ओके, तो मार्केट वैल्यू से कम प्राइस आप पे करते हो, तो दैट इज कॉल्ड ए डिस्काउंट. एंड इफ दैट डिस्काउंट इज लेस देन, इफ दैट डिस्काउंट का टोटल करना है आपको, और वो अगर 50,000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल होता है. पहले हम देखते हैं, चलो वन बाय वन देखते हैं तो आपको क्लैरिटी आएगी. सपोज इफ यू रिसीव व्हाट, इफ यू रिसीव द मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसीडरेशन. सपोज आपको मूवेबल प्रॉपर्टी मिली. देखो मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या, किसको मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं वो मैंने आपको पहले बता दिया. ओनली दीज 7 प्रॉपर्टीज आर ट्रीटेड एज अ मूवेबल प्रॉपर्टी. इसके अलावा सपोज ए कार, लैपटॉप, मोबाइल, ओके, कपड़े, या तो फिर वो नकली ज्वेलरी गिफ्ट में मिलती है, नॉट टैक्सेबल. ज्वेलरी भी कैसी होनी चाहिए, गोल्ड, सिल्वर और प्रेशियस मेटल से बनी हुई है, प्लेटिनियम जैसे, तो वही टैक्सेबल होगी. अगर आपको ये 7 के अलावा कुछ मूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है तो नॉट टैक्सेबल. दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड. सेम टाइम यू आर सपोज्ड टू कीप इन योर माइंड दैट कि ये सब लोगों से अगर ये तरीके से अगर मुझे मूवेबल प्रॉपर्टी भी मिलती है तो उसको मुझे 50,000 की टोटल कैलकुलेट करने में कंसीडर करना नहीं है. देखो ये लाइन मैंने इसीलिए नहीं पढ़ाया था कि आपको टोटल करके देखना है, तो टोटल करते टाइम पे इन लोगों को कंसीडर नहीं करना. तो व्हाइल कैलकुलेटिंग द अबव लिमिट 50,000, okay, following amount shall not be considered. So suppose if you have received the gift by any of this mode, it is not to be considered while we do the aggregate. Okay, total करते टाइम पे आपको नहीं कंसीडर करना है. ठीक है. Now see what I want discussing with you. Yes, suppose if you receive the movable property. Suppose आपको क्या मिल रहा है गिफ्ट में, you are receiving the movable property. Okay, suppose if you are receiving the movable property, okay, अगर आपको movable property गिफ्ट में मिलती है, okay, suppose if you are receiving the movable property, और वो भी movable property आपको कैसे मिलती है, you are receiving this movable property without consideration, without consideration, okay. तो विदाउट कंसिडरेशन मतलब आपने कुछ नहीं पे किया और आपको किसी ने मूवेबल प्रॉपर्टी दी, वो 7 कैटेगरी में से 7 आइटम में से, ओके. तो आपको क्या करना है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू आपको देखनी है कि वो प्रॉपर्टी जो आपको गिफ्ट में मिली उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, और यू आर सपोज टू चेक दी फेयर मार्केट वैल्यू, ओके. और वो फेयर मार्केट वैल्यू जितने जितने लोगों से अलग अलग गिफ्ट मिली है सबका आपको क्या करना है, यू आर सपोज टू डू दी aggregate. And if the aggregate amount of the fair market value is greater than rupees 50,000, then entire amount is taxable. Entire amount is taxable. Okay, अगर ये total आप करते हो, aggregate करते हो, if this aggregate is not more than 50,000, then nothing is taxable. For example, suppose देखते हैं, suppose मेरे एक friend ने मुझे एक कार गिफ्ट में दी और वो कार की वैल्यू है 2 लाख रुपए. दूसरा एक फ्रेंड मुझे गिफ्ट में, एक दूसरा फ्रेंड है वो भी मुझे एक बुलियन, ओके, एक गोल्ड बिस्किट देके जाता है जिसकी वैल्यू है 3 लाख रुपए. इसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 3 लाख, ओके. एक तीसरा फ्रेंड है, ओके,
that friend is giving me a shares in a gift. ये 3 लाख नहीं लेते, अब इसको 30,000 कर देंगे, ठीक है, 30,000 पूरा। एक दूसरा फ्रेंड मुझे शेयर्स आके गिफ्ट में देता है जिसकी वैल्यू है 25,000, ठीक है। और मेरे फादर है, वो फादर मुझे एक आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, मतलब एक बहुत पुरानी जिसकी बहुत वैल्यू है ऐसी मूर्ति गिफ्ट में देते हैं, जिसको कहते हैं आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन। तो ऐसी कोई मुझे स्टेच्यू, ओके, जिसको हम कहते हैं स्कल्पचर, तो स्कल्पचर गिफ्ट में देते हैं और वो स्कल्पचर की वैल्यू है 25,000 रुपये, ठीक है। और समझ लो ये सब चीजें आपको गिफ्ट में मिली है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इफ इट इज आस्क्ड टू यू दैट यू डिटरमाइन, तो कुछ समझ लो, अभी लिख रहे थे कि अगर आपका कोई दूसरा फ्रेंड है, वो फ्रेंड आपको आके एक पेंटिंग गिफ्ट में देता है और वो पेंटिंग की वैल्यू है 25,000। नाउ सी, सपोज if it is asked to you that what will be the taxable amount of the movable property received by Mr. X, Mr. X ने जो भी movable property receive की उसकी taxable value क्या हो, what you are supposed to do, you are supposed to do the total। तो taxable item है उसका टोटल करना है, और वो भी किस चीज का, फेयर मार्केट वैल्यू का, ओके। और वो फेयर मार्केट वैल्यू का एग्रीगेट अगर 50,000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो यू कैन सी हियर, इफ आई डू द टोटल, देखो फ्रेंड से कार गिफ्ट में मिली है, टैक्सेबल होगी या नहीं होगी, यस और नो? नहीं No, होगी। sir. क्योंकि वो मूवेबल असेट की डेफिनेशन में ही नहीं आता, ओके। इट इज नॉट अ मूवेबल असेट, तो टैक्सेबल नहीं होगा। देखो फ्रेंड से बुलियन टैक्स मिला है गिफ्ट में, तो ये टैक्सेबल हो सकता है, इसकी वैल्यू है 30,000, तो मैंने इसको टोटलिंग में लिया, ठीक है। दूसरे फ्रेंड से 25,000 के शेयर्स मिले, तो ये भी मूवेबल असेट है, तो इसको भी मैं कंसीडर करूंगा। देखो फादर से स्टैच्यू मिला है, तो वो भी मूवेबल असेट है, लेकिन ये कौन है, फादर है, रिलेटिव है, तो यहाँ पे इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, नॉट टैक्सेबल, क्योंकि फादर से मिला हुआ गिफ्ट नॉट टैक्सेबल। अभी तीसरे एक फ्रेंड से पेंटिंग मिला है जिसकी वैल्यू भी 25,000 है, तो ये टैक्सेबल होगा, ओके, क्योंकि मूवेबल असेट भी है और रिलेटिव भी है। तो देखो मुझे कितना मिला गिफ्ट में, 30,000, 30,000 और 25,000, ओके, मतलब सॉरी 30,000, 25, 25, मतलब कितना मिला, 80,000 80,000 80,000। दिस इज द एग्रीगेट ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू, एंड इफ दिस एग्रीगेट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन, ओके, ये मेरा जो एग्रीगेट है वो कैसा है, ग्रेटर है, ग्रेटर देन विच अमाउंट, ग्रेटर देन दी 50,000, 50,000 से ज्यादा है, तो पूरा 80,000 मेरा टैक्सेबल हो जाएगा। और इसका कैलकुलेशन जो आपको विदाउट कंसिडरेशन मिलता है उसकी 50,000 की लिमिट अलग है, और जो विद कंसिडरेशन आपको मिलता है उसकी लिमिट अलग है, मतलब दोनों को मर्ज मत करना, ओके। मतलब ये जो चीज आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, इसकी 50,000 की लिमिट के लिए आपको सबकी फेयर मार्केट वैल्यू का टोटल करना, और वो टोटल 50,000 से बढ़ जाता है तो टैक्सेबल होगा। सपोज आपने कुछ खरीदा है मार्केट से मूवेबल प्रॉपर्टी, तो आपको क्या देखना है, डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब उसकी फेयर मार्केट वैल्यू से आपने कितना कम पे किया, एंड इफ दैट डिस्काउंट अमाउंट का टोटल करो, एंड इफ दैट टोटल इज मोर देन 50,000 देन इट इज टैक्सेबल। फॉर एग्जांपल लेट अस सी, तो ये टोटल भी मूवेबल प्रॉपर्टी का है, लेकिन ये 50,000 के टोटल को वो दूसरे वाला जो आपको कोई आपके मतलब डिस्काउंट मिलता है उसमें कंसीडर नहीं करना है, इसमें हम वही 50,000 में क्या लेंगे, प्रॉपर्टी विच इज रिसीव्ड बाय यू विदाउट कंसिडरेशन। नाउ सपोज वही जो मिस्टर एक्स है, तो ये 50,000 में सिर्फ हमें वही चीजें लेनी है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है। लेकिन अगर आपने कुछ खरीदा है, तो कुछ समझ लो कि कोई एक मिस्टर एक्स, ओके, समझ लो कोई एक मिस्टर एक्स है, हेलो सर, यस, इस चैप्टर का सम आएगा इंटरनल एग्जाम में? જેટલું ભણાવે છે ને બધું જ આવશે, બરાબર, એટલા માટે હું ભણાવું છું અત્યારે, હે ને, ओके सर। જેટલું ભણાવ્યું હશે એમાંથી બધું જ આવશે, ओके। इसीलिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। ओके सर।
यस, चलो ठीक है, ये आपको डाउट है सब लोगों को, ओके, कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, ओके। लेकिन ऐसे चालू में आप लिंक ब्रेक करते हो ना तो मजा नहीं आता। ठीक है, तो दीजिए देखो क्या आएगा। देखो आपका मैंने आपको बता दिया कि what will be the paper style. Let us discuss the paper style first. Okay, then we will move towards the top. Okay, देखो आपका पेपर होगा 40 मार्क्स का, 40 मार्क्स का पेपर रहेगा, ठीक है। ये 40 मार्क्स के पेपर में आपको क्वेश्चन 1, ओके, दैट विल बी फ्रॉम यूनिट 1 और दैट विल बी फ्रॉम यूनिट 1। तो कितने मार्क का होगा? 20 मार्क। उसके और में आपको आएगा क्वेश्चन 1, वो भी यूनिट 1 में से आएगा, वो और में रहेगा और वो भी 20 मार्क। और एक क्वेश्चन 2 आएगा जो यूनिट 2 में से आएगा, मतलब ये अदर सोर्सेस और कैपिटल गेन जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, वो एक 20 मार्क का, और उसके और में यूनिट 2 आएगा, ठीक है, वो 20 मार्क का, ओके। मतलब 20 मार्क का यूनिट 1 में से, 20 मार्क का यूनिट 2 में से, ये आएगा। दिस इज योर पेपर, ओके। नाउ यूनिट 1 की अगर बात करें तो यूनिट 1 में मैंने पीजीबीपी आपको पढ़ाया है, ओके। और पीजीबीपी में मैंने आज बोल दिया कि हम जो जनरल डिडक्शंस हैं, जनरल डिडक्शन सेक्शन 37, ओके, तो सेक्शन 37 तक ही रखते हैं। सेक्शन 37 तक ही आपका सिलेबस यूनिट 1 का रहेगा। इंटरनल के बाद इसके सम्स और वो सब करेंगे जो हम फाइनल एग्जाम में करेंगे। यहाँ आपको जनरल डिडक्शन तक करना है, ओके। मतलब पहले पेज से लेके जनरल डिडक्शन तक के सभी पेज, और वो एक पेज पे मैंने सेक्शन 41 पढ़ाया, ओके। वो सेक्शन 41 पीछे बहुत पीछे दिया हुआ, तो इतना आपका यूनिट 1 का इंटरनल का सिलेबस रहेगा। और यूनिट 2 में तो मैं पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ। यहाँ पे हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज देखने वाले हैं और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ये दोनों हम देखने वाले हैं 2 तारीख तक, ओके। जैसे हर रोज इवनिंग के लेक्चर में हम वो देखेंगे और वहां से आपको आएगा अदर सोर्सेज में, ठीक है। तो ये आपको पेपर स्टाइल हुआ कि यूनिट 1 का जो क्वेश्चन 1 होगा वो पीजीबीपी में से होगा, ओके, और उसके और में भी जो होगा वो भी पीजीबीपी में से होगा। यूनिट 2 में अदर सोर्सेज और पीजीबीपी, अदर सोर्सेज और कैपिटल गेन में से 20 मार्क का, और उसके और में वही 2 चैप्टर में से 20 मार्क, ठीक है। तो दिस इज योर पेपर स्टाइल, ओके। नाउ सो फार एज what will be asked, okay, is concern कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ओके। देखो मैं आपको कुछ छोड़ता नहीं हूँ, सब सम्स भी आते हैं तो सम्स भी कराता हूँ, जहाँ पे थ्योरी पढ़ाना है तो थ्योरी भी डिटेल में पढ़ाता हूँ, तो कुछ भी आ सकता है। बट सी, once I will complete the syllabus on the 2nd or 3rd, okay, on that day I will be in a position to say you कि बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ आ सकता है। Yet I have not completed your syllabus, so I cannot say you that whether there will be a मतलब there will be a theory or there will be a questions, मतलब sums, ये अभी तक नहीं बता सकता मैं। But once again the day on which I will take the last lecture before your internal exam, okay, ये आपको पेपर स्टाइल आपको लिखना है, लिख दीजिए, ओके। बाकी का सम्स आएगा, थियरी आएगा, वो एक बार बाद में हम डिस्कस करेंगे। अभी तो अगर मैं आज अभी ऐसा बता दूं कि भाई सम्स आएंगे तो બધા थियरी कोई वांचे नहीं, टैक्सेशन છે, थियरी वगैरह सम्स आवड़े नहीं। और अगर मैं पूछता हूँ थियरी में पूछ लूंगा तो आप सम्स में ध्यान नहीं दोगे, समझ रहे हो? क्यों मैं नहीं बता रहा हूँ? Yes, sir. Because my goal is not to complete the syllabus, okay. The syllabus ही complete करना होता तो मैंने कब का syllabus आपका complete कर दिया होता। I have to teach you the taxation, आपको मेरे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करना है, और इसीलिए मेरे 400 स्टूडेंट में से 152 स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग द लेक्चर who are really interested, okay. तो दिस इज फॉर यू। तो
don't think from the exam point of view. Whenever you learn in my lecture, you think that मुझे taxation पढ़ना, एग्जाम का टेंशन छोड़ दो आप, ओके, वो हो जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि भाई ऐसा ऐसा आपको करना है, बट नॉट ऑन द फर्स्ट डे, ओके. Once I should complete my syllabus, whatever is my goal, whatever is in my heart that I have to teach you, that I will teach you first. And then क्या है एग्जाम के लिए क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए एक सेपरेट 15-20 मिनट ले लेंगे हम, और उसमें से भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है देख लेते हैं, ठीक है. इज इट क्लियर? पेपर स्टाइल? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So see, what I was discussing with you. Movable without consideration. Okay, नहीं, suppose you have received a inadequate. movable property without consideration. देखो, जो विदाउट कंसिडरेशन आपको मिला है उसका लिमिट 50,000 का अलग है, और विद कंसिडरेशन मतलब आपको कोई गिफ्ट नहीं देता, लेकिन आप खरीदते हो, और वो खरीदते ऐसे हो कि वो गिफ्ट जैसा ही है, हो गया, बहुत कम प्राइस में किसी ने आपको दे दिया, ठीक है, तो that is also treated as a gift, okay, and it is taxable. So suppose if you receive the movable property, suppose आपको movable property मिलती है गिफ्ट में, suppose if you are receiving the movable सर property, yes, हाँ डायमंड ले तो डायमंड मूवेबल में आएगा या इनमूवेबल में? precious stone हुआ बेटा मूवेबल में आएगा वो, ओके, precious stone is a movable asset. और ज्वेलरी हमारी नकली है और डायमंड असली है. It is a precious stone, ओके. तो वो देखो यहाँ पे ज्वेलरी जो वर्ड है ना, ज्वेलरी includes what? If anything is made, okay, मतलब इनकम टैक्स के लिए ज्वेलरी किसको कहते हैं? एनीथिंग इज मेड फ्रॉम द प्रेशियस स्टोन, ओके. प्रेशियस स्टोन मतलब अकेला हीरा नहीं, इसके अंदर मोती भी आ सकता है, कोई ग्रह का नंग भी आ सकता है, और काफी सारे अकीक के पत्थर, और मतलब कोई भी प्रेशियस स्टोन है, प्रेशियस स्टोन से कुछ बना है तो दैट इज ट्रीटेड एज अ ज्वेलरी, ओके. और एनीथिंग इज मेड फ्रॉम द प्रेशियस metal, then that is also treated as a jewelry, okay. So anything which is made, suppose someone has give me a gift में मुझे एक टेबल दिया, देखो टेबल आपके हिसाब से क्या है? फर्नीचर है, यस और नो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन Yes, sir. ये Yes. के ऊपर की साइड पे, चारों साइड पे अगर हीरे लगाए हुए हैं, नाउ दिस टेबल विल बी ट्रीटेड Jewelry. is treated as a jewelry, okay. सपोज ज्वेलरी, मैंने अपना एक ये मटेरियल है ना, एक मटेरियल है, उसमें बहुत अच्छा वर्ड ये ज्वेलरी को डिफाइन करने के लिए याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल लिखा था, एक मिनट यहाँ पे तो नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा, याद आ गया मुझे क्या था वो. जो बुक है, सर्च क्या कर रहा हूँ देखना आप. सर्च किया मैंने, क्या सर्च किया दिख रहा है आपको? Yes, Yes, sir. तो माधुरी मैंने क्यों सर्च किया देखिए आप, पूरी बुक में कोई जगह पे माधुरी लिख के का एग्जाम्पल दिया था, इसीलिए कोई जगह पे माधुरी का एक्सप्लेनेशन है, देखते हैं कहाँ पे सर्च आपके आ सकती है.
कहीं पे लिखा तो था मैंने, नहीं लिखी माधुरी, तो हम ढूंढ लें। जैसे हमें कल या परसों पढ़ना था, क्योंकि यही चीज व्हाट इज कैपिटल एसेट इज ट्रीटेड एज व्हाट, कैपिटल एसेट इज ट्रीटेड एज योर, अगर कैपिटल एसेट ही आपको गिफ्ट में मिलते हैं तो ही टैक्सेबल होता है, अगर दूसरा कोई चीज आपको गिफ्ट में मिलता है तो टैक्सेबल नहीं, वो मैंने आपको बताया। तो वो मूवेबल एसेट में कौन सी कैपिटल एसेट आती है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो मूवेबल एसेट में कौन कौन सी कैपिटल एसेट आती है दैट वी हैव डिस्कस्ड, ओके। नाउ सी, इसमें ज्वेलरी इज ट्रीटेड एज द मूवेबल एसेट, ओके। What is movable asset that discussing words? यहाँ पे नहीं लिखा, वो कहीं पे मैंने लिखा था, इसमें अच्छा एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे दिखा देखो, एनीथिंग विच इज मेड फ्रॉम द प्रीशियस स्टोन, ओके, or swain or work into wearing apparel or furniture is classified into category of jewelry, so it is a capital asset। मतलब कोई टेबल है, कोई wearing apparel है, और उसके अंदर या तो प्रेशियस स्टोन लगा हुआ है या प्रेशियस मेटल लगा हुआ है, it is treated as a capital asset, okay, it is treated as a jewelry, it is classified as a jewelry, okay। Like for example, throne made out of the gold, platinum, diamonds, or the shirts with the diamond button swaying in it। अगर शर्ट के अंदर डायमंड के बटन लगे हुए तो शर्ट को भी ज्वेलरी कहा जाता है, ओके। और वो माधुरी वाला मैं बोल रहा था कि वो जो देवदास मूवी में माधुरी ने जो घाघरा पहना हुआ था, ओके, वो ग्रीन कलर का मार डाला वाला सॉन्ग में पहनती है ना, वो मार डाला वाला तो कौन सा सॉन्ग था याद नहीं है, वही सॉन्ग था। हाँ हाँ बहुत नहीं, डोलारे वाले सॉन्ग में, शायद डोला वाले नहीं, एक सॉन्ग में उसने वो घाघरा पहना था जिसका वेट बहुत था, और इट वाज मेड आउट ऑफ द गोल्ड थ्रेड, यस। तो वो दैट इज ट्रीटेड, दैट इज आल्सो ट्रीटेड एज ए ज्वेलरी, ओके। तो वो अगर एनीथिंग, मतलब ज्वेलरी डज नॉट मीन only the thing which is made out of the, इसका माइक चालू हो गया बेटा, okay, jewelry does not mean only a जो ज्वेलरी लेडीज लोग पहनते हैं उसको ही ज्वेलरी नहीं कहते, अगर कोई कपड़ा भी बना है उसके अंदर ज्वेलरी लगी हुई है, ओके। तो इसीलिए वो माधुरी का एग्जाम्पल परफेक्ट एग्जाम्पल था, इट इज गिवन इन मैनी बुक्स ऑल्सो। जो माधुरी ने देवदास मूवी में जो घाघरा पहना हुआ था दैट वाज मेड आउट ऑफ द गोल्ड थ्रेड, सो दैट इज आल्सो ट्रीटेड एज अ ज्वेलरी, ओके। तो ज्वेलरी आपका भी वो डायमंड वाला क्वेश्चन जिसने भी पूछा था उसका डाउट क्लियर हो गया बेटा? यस सर। ओके, तो एनीथिंग विच इज मेड, जहाँ पे स्टोन लगा है, फर्नीचर है, फर्नीचर पे भी स्टोन लगा है या तो फिर कुछ सोने का लगा हुआ, तो फर्नीचर को भी ज्वेलरी कहा जाए, ओके। Now what I was discussing with you, my point of discussion was the movable property if you have received for a inadequate, yes. Sorry for interrupting, but I have a question. Like after divorce, we get a gift, then it is taxable or not? No, it is taxable. डिवोर्स Is પછી taxable. બેટા કોણ કોઈ ગિફ્ટ આપે? પહેલો પ્રશ્ન તો એ થાય કે ડિવોર્સ પછી કોઈ હસબન્ડ વાઈફ ને ગિફ્ટ આપે? ना, No, sir. ब्रेकअप पार्टी होती है ना, ब्रेकअप पार्टी भी रखते हैं आजकल, ऐसा है।
ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखा है, द डे ऑन विच यू गिव द गिफ्ट ऑन दैट डे यू शुड बी अ स्पाउस. Once the divorce is taken place, after the divorce, he or she will not be treated as your spouse. Okay. Now he or she will be a third party. डाइवोर्स हो गया मतलब अभी वाइफ नहीं रही, हस्बैंड नहीं रहा. अगर इफ यू रिसीव समथिंग और उससे गिफ्ट मिलता है तो नॉट इट इज टैक्सेबल. कि अगर मलाइका अरोरा को अगर अरबाज खान आज के दिन भी कोई गिफ्ट देता है तो इट विल बी टैक्सेबल. It will be taxable because now the relationship or marriage is not success. Okay, तो डिवोर्स होने के बाद गिफ्ट मिलता है तो वो रिलेटिव नहीं होता, रिलेटिव की डेफिनेशन में फॉल नहीं होता. यहाँ क्या बोला है, स्पाउस. तो स्पाउस ही नहीं रहते आप तो कहाँ से. ओके, गिफ्ट रिसीव करते उस दिन स्पाउस होने चाहिए आप गिफ्ट देने के टाइम पे. जिस दिन दिया उस दिन वो स्पाउस है नहीं, एक्स वाइफ ऐसा बोलेंगे, एक्स हस्बैंड ऐसा बोलेंगे, आगे एक्स लग जाता है. ओके, तो नॉट टैक्सेबल. समझ में आया बेटा? Yes, sir. Thank you. सर हेलो सर, डाउट है डाइवोर्स હા બોલો. સર. આપણે કોઈ એન્ટિક વસ્તુ હોય તે ગિફ્ટમાં મળે અને કોઈ પુરાના નોટ્સ અને એ હોય તો એ સર આપણને કોઈન્સ એ ગિફ્ટમાં મળે તો સર? ये लखी बेटा टैक्सेबल था. इट इज अ, देखो यहाँ पे लिखा मैंने आपको, ये यहाँ आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन का मतलब ये वही होता है कि पुरानी मूर्तियाँ, पुरानी कॉइन्स है, ये सब गिफ्ट में मिलता है. इट इज अ कैपिटल असेट. यहाँ पे आपको यही डेफिनेशन में ही लिखा है. यहाँ पे देखो ये जो मैंने लिखवा है 7 आइटम, इसमें लिखवा है एनी आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन. એટલે કોઈ પણ પૌરાણિક વસ્તુઓ છે, ઓકે, કે જેને આર્કિયોલોજીકલી પ્રૂવ કરી શકાય કે લાઈક સપોઝ કોઈ બુદ્ધ ભગવાનની મૂર્તિ છે કે કોઈ કોઇન્સ છે કે કોઈ કઈ પણ વસ્તુ છે. ओके, इफ यू आर रिसीविंग, देखो ये ड्राइंग्स और पेंटिंग भी वही कैटेगरी में आते हैं. ये सब चीजें आपके लिए कैपिटल असेट बनती है व्हेन यू रिसीव. सो इफ यू रिसीव देन इट इज टैक्सेबल. ओके, इफ यू रिसीव देन इट इज टैक्सेबल. आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन कहा जाता है. दूसरा किसी को कोई डाउट था? सर No, sir. हेलो नो डाउट. सर यस. सर આપણે ડાયવર્સ બોલો. ટાઈમે કોર્ટ કહે કે ભાઈ કે જે પૈસા આલે, કોર્ટ કહે કે ભાઈ આને પૈસા માન લો ડાયવર્સ થયું, કોર્ટ કહે કે 10 લાખ તમે આલવાના છે વાઇફ ને, એક તો gift પછી કહેવાય, મને એમ કે gift કહેવાય. ના तो ગિફ્ટ તો ના કહેવાય. gift ना कहेवाय. ના तो ગિફ્ટ if તો ના it is કહેવાય. not treated as a gift तो ये सेक्शन में उसकी बात नहीं करते. सपोज हस्बैंड वाइफ को देता है हर उसके मेंटेनेंस के लिए कुछ भी पैसा, ओके, हाँ. तो वो वाइफ के लिए उसके मेंटेनेंस के लिए उसको मिलता है एज पर द कोर्ट ऑर्डर. ओके, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा. लॉजिक ये है कि उसके हस्बैंड ने जब भी पैसा कमाया उसके हस्बैंड ने उस पर टैक्स भर दिया. સપોઝ હું એમએસ યુનિવર્સિટીમાં લેક્ચરર છું, મારો ₹1,00,000 પગાર આવતો હોય અને મારા ડાયવોર્સ થઈ ગયા, મારી વાઈફને 25,000 કોર્ટે આપવાનું કીધું છે, તો લાખ પર તો મેં પહેલા ટેક્સ ભરી દીધો. Yes, sir. યસ સર. It is again not taxable when it is given to the wife. समझ में आया आपको? तो अगेन Yes. इट इज नॉट टैक्सेबल. तो दैट इज कॉल्ड द कॉम्पेंसेशन और मेंटेनेंस के जो उसको पैसे दिए जाते हैं उस पर द कोर्ट ऑर्डर, अगर वाइफ रिसीव करती है तो नॉट टैक्सेबल हो जाएगा. ओके, और वो यही कैटेगरी में नहीं, अमुक वो डाइवोर्स वक्त लाइक सपोज बहुत बड़े बड़े लोगों का डाइवोर्स होता है. ओके, तो वो टाइम पे भी वाइफ को बहुत बड़ी प्रॉपर्टी वो ले लेती है. ओके, तो ऐसा होता है. लाइक यू हैव रिसेंटली सीन द केस ऑफ द बिल गेट्स. ओके, बिल गेट्स ने we have never expected that he will give the divorce and Bill Gates have given the divorce. Okay, तो अगर बिल गेट्स अपनी वाइफ को जो प्रॉपर्टी दे रहा है, लाइक देयर इज अ वो क्या है, माइकल शूमेकर, he has also given a huge compensation to his wife when there was a divorce. इंडिया के बाहर के केस है, ऐसे इंडिया में भी बनते हैं. तो देखो ये यहाँ ये कैटेगरी में आते हैं. यू हैव टू प्रिपेयर द विल and under the will you are giving the property. એનું તમારી પ્રોપર્ટીમાંથી એનો હિસ્સો આપી દો છો. when they are receiving in this way it is not taxable in the hands of recipient. recipient के लिए वो गिफ्ट नहीं है कि recipient को मिल रहा है और अंडर द लीगल प्रोविजंस यू आर सपोज टू गिव द सेम, इट इज नॉट टैक्सेबल. और इसीलिए बड़े बड़े लोगों का डाइवोर्स लीगली होता है लेकिन रिसिपेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होता है. वो भी एक टैक्स प्लानिंग का ही एक पार्ट होता है. हमारे इंडिया में नहीं है ये सब,
लेकिन फॉरेन में आप डू यू बिलीव दैट दैट बिल गेट्स हैव गिवन द डाइवोर्स? वो डाइवोर्स उसने अपनी वाइफ से झगड़ा हुआ या नहीं बन रहा है उसी लिए दिया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. दे मे बी टुगेदर बट इट इज जस्ट टू शेयर द प्रॉपर्टी, क्योंकि वहां पे प्रॉपर्टी पे भी टैक्स लगता होगा. अगर डाइवोर्स दे देता हो तो वाइफ के हाथ में प्रॉपर्टी कितने जाएगी? नॉट टैक्सेबल. अभी उसके पास प्रॉपर्टी पे जो प्रॉपर्टी टैक्स होगा वो क्या होगा? 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. टैक्स प्लानिंग के एंगल से दिस पीपल आर डूइंग द डाइवोर्स. कि एक्चुअल डाइवोर्स होता नहीं है, वो साथ में ही रहता है. ओके, लेकिन आपका जो क्वेश्चन था दैट इज क्लियर टू एवरीवन कि भाई डाइवोर्स के टाइम पे के बाद हस्बैंड अपनी वाइफ को कुछ देता है, Yes, sir. नॉट टैक्सेबल, क्योंकि हस्बैंड ने उस पर Yes, टैक्स sir. किया होगा. ठीक है. Yes. Now shall I move towards the next point? I have targeted to complete this point. Okay. Yes, sir. મને કોઈ પીજીબીપી માં આટલા પ્રશ્નો પૂછતે તો મજા આવે, પણ લોકોને ડાયવોર્સ માં રસ આવે છે. આવા બધામાં તમને વધારે પ્રશ્નો પૂછવાની ઈચ્છા થાય છે ને. પીજીબીપી માં કેમ આવો પ્રશ્ન કોઈ પૂછતું નથી? This is interesting. Okay, that's why you may be asking this question, but I'm expecting this kind of question when we are teaching, which will be really useful to you in your life. Okay, just a minute, I'll take a 5-minute break and then we'll start. 2 minute no break. हेलो, क्या मंगाओ? यस, पेपर स्टाइल मिला कि किसी को टैक्स का? Am I audible? Hello, shall we start? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ये म्यूट हो गया था, लेकिन वो जो लास्ट जिसने क्वेश्चन पूछा वो डाइवोर्स वाला समझ में आ गया आपको? Yes, sir. Okay. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, लेट अस मूव अहेड. अभी हम हमारे टॉपिक पे कंसंट्रेट करते हैं. सपोज इफ यू रिसीव द मूवेबल प्रॉपर्टी, देखो आप क्या करते हो, मूवेबल प्रॉपर्टी यू आर रिसीविंग दी movable property, but you are buying this movable property for the inadequate consideration. Okay, तो आप मूवेबल प्रॉपर्टी बाय करते हो फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन. ओके, सपोज इफ यू आर रिसीविंग द मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, आपको मूवेबल प्रॉपर्टी में वो 7 असेट आपको बताए. देखो यहाँ आपको ये सब चीजें गिफ्ट में नहीं मिल रही, बट यू आर बाइंग द सेम बिकॉज यू आर पेइंग द कंसिडरेशन बट इट इज वेरी मच लेस. ओके, तो ये केस में आपको क्या करना क्या है, देखो यू कैन सी हियर, यहाँ पे क्या लिखा है. Yes, you are at this point. Suppose if you are receiving the movable property for inadequate consideration, जिसको हम कंसेशनल रेट भी बोल सकते हैं.
if the aggregate amount of the discount of all the movable property received, देखो डिस्काउंट का जो अमाउंट है it is exceeding rupees 50,000, then the total discount receivable is taxable. Okay, total discount received is taxable. Okay, एक मिनट है मेरे को ये 2 मिनट। Okay, suppose I have received the movable property for a inadequate consideration. For example, मेरे एक फ्रेंड की एक ज्वेलरी शॉप है, वहां जाके मैं ज्वेलरी खरीदता हूँ और वो ज्वेलरी की मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू है 2 लाख रुपया। ओके, और वो मेरा फ्रेंड है, वो मुझे बेच रहा है ये प्रॉपर्टी, मतलब ये ज्वेलरी सिर्फ 1,80,000 में। He is giving this jewelry to me for rupees 1,80,000. Okay. Now suppose I am going in the another shop of painting, और वो पेंटिंग में एक बाय कर जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 3 लाख रुपया। ओके, और वो मुझे बेचता है 2,80,000 में। is selling the same to me for rupees 2,80,000. Okay, then I purchase a car. देखो ये सभी चीजें मैं बाय करता हूँ। I purchase a car जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 5 लाख रुपया, और वो मुझे बेच रहा है 1 लाख रुपये। सपोज समझ लो कि मेरे फादर की ही कोई शॉप है। ओके, सपोज मेरे फादर से मैं शेयर्स बाय करता हूँ, जो कोई अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स बाय करता हूँ, और वो शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू है 3 लाख रुपए। और वो मुझे बेचते हैं 1 लाख रुपए शेयर्स। ओके, नाउ इफ इट इज आस्क्ड टू यू दैट यू डिटरमाइन द टैक्सेबल अमाउंट, एक 5वां केस ले लेते हैं कि सपोज आई एम रिसीविंग, फ्रेंड से मैं एक बुलियन बाय करता हूँ, फ्रेंड से बुलियन बाय करता हूँ, और वो बुलियन है 3 लाख रुपए का, और वो मुझे बेचता है 2,80,000। ठीक है, सपोज दिस इज द सिचुएशन। ओके, तो इन दिस केस दिख रहा है आपको स्क्रीन? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, तो देखो यहाँ पे मैं ज्वेलरी बाय करता हूँ, तो देखो इसकी वैल्यू कितनी है? 2 लाख। ठीक है, ये बार बार बंद हो जाता है। इसकी वैल्यू है 2 लाख, और वो मुझे बेचता कितने में है? 1,80,000 में। तो यहाँ पे मुझे कितना डिस्काउंट मिल रहा है? देखो ये 20,000. डिस्काउंट मेरे लिए गिफ्ट कही जाएगी, क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है, उसने मुझे सस्ते में दिया। तो इसका मतलब क्या, उसने मुझे 20,000 रुपये की गिफ्ट ही दे दी, ऐसा ही कहा जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे मैं पेंटिंग बाय कर रहा हूँ, 3 लाख है, वो मुझे 2,80 में बेच रहा है, मतलब यहाँ पे भी मुझे 20,000 की गिफ्ट मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे भी मुझे 20,000 की गिफ्ट मिल रही है। सपोज यह एक कार है, देखो कार को मैं कंसीडर करूंगा, कैलकुलेशन में लूंगा No, sir. नो सर। No, sir. कैपिटल असेट, इसको No, हम sir. कंसीडर नहीं करेंगे। देखो ये मैं फादर से बाय करता हूँ, ये शेयर फादर से मैंने सपोज समझ लो शेयर्स बाय किए, तो फादर से शेयर्स बाय किए, वो भी यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि फादर इज अ रिलेटिव से। सपोज आप बोलो कि 3 लाख के शेयर 1 लाख में दिया, तो 2 लाख मेरे के लिए गिफ्ट या गिफ्ट है, लेकिन गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव इज नॉट टैक्सेबल। ये तो नॉट टैक्सेबल हो जाएगा, ये भी नॉट टैक्सेबल हो जाएगा। देखो अभी यहाँ पे ये 3 लाख का कुछ बुलियन था, उसने मेरे को 2,80,000 में दिया, मतलब यहाँ पे भी मुझे 20,000 का गिफ्ट मिला फ्रेंड से।
Now I have to, what I have to do? I have to do the aggregate of all this discount. ये सभी डिस्काउंट का मुझे एग्रीगेट करना है. देखो तीनों डिस्काउंट का मैंने एग्रीगेट किया, तो एग्रीगेट इज 60,000. ओके, which is greater than the 50,000. देखो you are supposed to do the aggregate of the discounts. ये सब क्या है? डिस्काउंट्स है, और ये डिस्काउंट्स का आपको एग्रीगेट करना है. एंड इफ दिस एग्रीगेट इज मोर देन 50,000 then it is taxable. So here the entire amount of discount of rupees 60,000 will be taxable. Okay, ये पूरा 60,000 यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा. देखो सपोज ये टोटल 40,000 होता तो क्या होता? नथिंग विल बी टैक्सेबल. तो अगर आपको मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिलती है, नहीं गिफ्ट में नहीं मिलती, लेकिन आप क्या करते हो? यू आर बाइंग इट फ्रॉम द मार्केट एंड बट यू आर पेइंग द इनएडिक्वेट कंसिडरेशन. इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मतलब व्हाट? फेयर मार्केट वैल्यू से कम पैसा आपने चुका है. Now if this kind of gift you are receiving, then you are supposed to do the total of the discount, and then aggregate of discount is more than 50,000, then the entire amount will be chargeable to tax. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. देखो वो जो फ्री में मिल रहा है मूवेबल प्रॉपर्टी, उसकी 50,000 की लिमिट अलग है और इसकी 50,000 की लिमिट अलग है. ठीक है, एक बार मैं इसको क्लोज करके रीओपन करता हूँ. ये प्रॉब्लम सॉल्व हो. ठीक है, so you are supposed to do the total, and if the total is more than 50,000 then it is taxable. Okay, तो वहां पे आपको हमेशा क्या देखना है? फेयर मार्केट वैल्यू, और फेयर मार्केट वैल्यू और परचेज प्राइस का डिफरेंस देखना है. इफ डिफरेंस का और सभी जितने ऐसे टैक्सेबल अमाउंट मिले, और इफ वैल्यू इज मोर देन 50,000 देन इट इज टैक्सेबल. देखो अगर वैल्यू 50,000 से कम है तो क्या होगा? नथिंग विल बी टैक्सेबल. So if the discount received, if the value of the discount is more than 50,000, nothing is taxable. ठीक है, इसमें कुछ taxable नहीं होगा. ठीक है, then nothing will be taxable. Now last kind of property that we will going to discuss, that is the receipt of immovable property. देखो यहाँ पे क्या लिखा है? Here you can see in the bracket it is written single transaction. यहाँ पे क्या लिखा है? all transaction. आपके हाथ में मटेरियल है, आपने परचेस कर लिया होगा, ये कैश वाले के बाजू में भी यहाँ पे लिख दीजिए all transaction. देखो यहाँ पे हम टोटल करके देखते हैं सबका. ये टोटल 50,000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल है. यहाँ पे भी टोटल करके देखते हैं. देखो यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया? एग्रीगेट. यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया? टोटल. यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया? एग्रीगेट. लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या बोला है? सिंगल ट्रांजेक्शन. तो यहाँ पे आपको टोटल करके नहीं देखना है, वन बाय वन सिंगल ट्रांजेक्शन आपको देखना है. ओके, तो सपोज इफ यू रिसीव द इमूवेबल प्रॉपर्टी एज अ गिफ्ट, अगर आपको गिफ्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल रही है तो व्हाट इज इट्स टैक्सेबिलिटी? ओके, रिसीविंग द इमूवेबल प्रॉपर्टी एज अ गिफ्ट, व्हाट इज द टैक्सेबिलिटी? देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपको पहले तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है. देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी मींस व्हाट? हियर इमूवेबल प्रॉपर्टी includes only two things here, either a land or building. Building. वो ही हम क्या कहेंगे? we will call it as a immovable property. Now suppose if you receive the immovable property as a gift, then there are two possibilities. You may have received the immovable property without consideration. Okay, without consideration आपको मिला है, या तो फिर आपको मिला है फॉर दी इनएडिक्वेट कंसीडरेशन. ठीक है, ठीक है. तो सपोज इफ यू हैव रिसीव्ड द इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसीडरेशन. देखो आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिला है कैसे? विदाउट कंसीडरेशन.
अगर आपको विदाउट कंसिडरेशन में अगर आपको लैंड मिला है, बिल्डिंग मिला है, तो आपको क्या करना है, यू डोंट हैव टू डू दी टोटल, बट यू आर सपोज टू टेक अ सिंगल ट्रांजेक्शन। आपको सिंगल ट्रांजेक्शन वन बाय वन देखना है। फॉर एग्जाम्पल से सपोज माई फादर हैज गिफ्टेड मी अ लैंड, ओके, और वो लैंड की देखो यहाँ पे हर एक प्रॉपर्टी का क्या देखना है आपको, देखो यहाँ पे लिखा है इफ दी एसडीवी, एसडीवी का मतलब होता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। वो हर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है लैंड या बिल्डिंग, वो लैंड और बिल्डिंग की जो वैल्यू होती है जंतरी किंमत આપણે જેને ગુજરાતીમાં કહીએ અને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વેલ્યू। तो वो लैंड है, उसकी देखो फेयर मार्केट वैल्यू है से 5 लाख रुपए, और उसकी जो जंतरी कीमत जिसको हम कहते हैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, वो है 2 लाख रुपये। ओके, देखो इनकम टैक्स के ये सेक्शन के लिए आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू नहीं देखनी है, आपको क्या देखना है, यू ऑलवेज हैव टू सी दी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ओके, सपोज मेरे फादर ने मुझे 2 लाख स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाली लैंड गिफ्ट में की दी। फिर समझ लो मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे एक छोटा सा फ्लैट गिफ्ट में दिया, ओके, और वो फ्लैट की फेयर मार्केट वैल्यू है 10 लाख रुपये, ओके, लेकिन उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 40,000 रुपये। ओके, फिर एक तीसरा फ्रेंड, एक सपोज समझ लो मेरे कोई टीचर थे, और वो टीचर ने भी मुझे लैंड गिफ्ट में दी, और वो लैंड की फेयर मार्केट वैल्यू है 5 लाख रुपया, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है से 70,000, and if it is asked to you that what will be the taxable amount, okay, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखो यहाँ आपको फेयर मार्केट वैल्यू और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दोनों दिया है, तो यू डोंट हैव टू कंसीडर दी फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू हम सिर्फ कहाँ देखेंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी में। इमूवेबल प्रॉपर्टी में हमें क्या देखना है, वी हैव टू कंसीडर ओनली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ओके, देखो यहाँ पे मुझे मेरे फादर से लैंड गिफ्ट में मिलती है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है, 2 लाख रुपये। टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, नहीं Not होगा। a tax. नहीं होगा। फादर से मिला है, नॉट टैक्सेबल। ओके, अभी देखो ये फ्रेंड से मिला है, और फ्रेंड से मिला है, और वो क्या मुझे मिला है, फ्लैट मुझे दिया है उसने, और जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है, 40,000। टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, Not नहीं taxable. होगा। यस। देखो यहाँ आपको ऐसे डायरेक्ट बोल ही देना है नहीं टैक्सेबल, क्योंकि यहाँ आपको टोटल नहीं करना है, आपको हर एक ट्रांजेक्शन देखना है, सिंगल ट्रांजेक्शन देखना है। और ये सिंगल ट्रांजेक्शन मैंने देखा, और ये ट्रांजेक्शन में 40,000 है, तो मतलब ये 50,000 से कम है। बाकी के ऊपर का जितना आपको पड़ा है सब जगह पे मैंने टोटल किया, यहाँ पे टोटल नहीं करना है, आप ध्यान रखिए। एक एक ट्रांजेक्शन को देखो, देखो यहाँ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 40,000 से कम है, मतलब 50,000 से कम है, इट इज लेस देन 50,000, तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज नॉट टैक्सेबल। और यहाँ पे देखो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये टैक्सेबल। तो ये पूरा टैक्सेबल। मिला है, उसमें से मेरी टैक्सेबल गिफ्ट कितनी होगी, ओनली 70,000। ओके, मतलब आपको सिंगल ट्रांजेक्शन देखना है, यहाँ पे टोटल नहीं करना है, टोटल करके नहीं देखना है, आपको सिंगल ट्रांजेक्शन देखना है, और सिंगल ट्रांजेक्शन के ग्राउंड पे आपको डिसाइड करना है। Now suppose if you have received the immovable property at the concessional rate, concessional rate मतलब आप बहुत कम प्राइस में आप किसी से बाय करते हो, तो when it is taxable, तो देखो यहाँ पे taxable कब होगा, if the discount is greater than, if the discount is greater than higher of rupees 50,000 for 10% of the consideration, then the discount is taxable। देखो यहाँ पे भी आपको सिंगल ट्रांजेक्शन देखना है, आपको डिस्काउंट को दो चीज के साथ कंपेयर करना है, हायर ऑफ 50,000 और 10% ऑफ द कंसिडरेशन, और अगर उससे ज्यादा डिस्काउंट है देन इट इज टैक्सेबल। फॉर एग्जांपल सी सपोज, तो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज द इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द inadequate consideration. So let us see the immovable property for inadequate,
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ पर હું બોલતો જ નથી, ક્યાંથી આવવાનું? ઓકે, જસ્ટ મિનિટ, જસ્ટ મિનિટ. નોટબુક બે મિનિટ. Okay. Suppose if I am receiving immovable property, देखो मैं मेरे को क्या मिल रहा है? I am receiving the immovable property for a inadequate consideration. ठीक है, सपोज समझ लो मेरा एक फ्रेंड है, प्रॉब्लम होती थी, एक फ्रेंड से मैं लैंड परचेस करता हूं और ये लैंड की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 10 लाख रुपया, और मैं उसको जो प्राइस पे कर रहा हूं दैट आई एम पेइंग ₹3 लाख. ओके, तो मुझे सिंगल, देखो फ्रेंड से मिला है तो मुझे सिंगल ट्रांजेक्शन देखना है कि वेदर इट इज टैक्सेबल और नॉट. तो यू कैन सी हियर डिफरेंस इज हाउ मच? डिफरेंस इज, देखो 10 लाख की आइटम आपको कितने में मिल रही है? 3 लाख. व्हाट इज द डिस्काउंट दैट यू आर गेटिंग? 7 लाख. नाउ वेदर दिस इज टैक्सेबल और नॉट, तो आपको क्या करना है? यू आर सपोज टू कंपेयर विद टू थिंग्स. ओके, ₹50,000 और क्या बोला है यहाँ पे? 10% ऑफ द कंसिडरेशन. देखो आपने कंसिडरेशन कितना पे किया है? 3 लाख. 3 लाख का 10% कितना होता है? 30,000. हायर कौन सा हुआ? 50,000. 50,000 से ये 7 लाख हायर है या नहीं? तो आंसर इज यस, 7 लाख इज हायर, सो इट इज टैक्सेबल. ओके, देखो समझ लो कि सपोज मैंने यहाँ पे डिस्काउंट पे किया उसको, सपोज उसको मैंने जो प्राइस पे की है वो 9,50,000 पे किया है, 9,80,000 पे किया है. देखो सपोज हाउ मच प्राइस आई हैव पेड? आई हैव पेड हिम 9,80,000 प्राइस, और उसकी फेयर मार्केट सॉरी प्राइस मैंने 9,80,000 पे किया. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 10 लाख. तो यहाँ पे मेरा डिस्काउंट कितना हुआ? डिस्काउंट 20,000. एक मिनट बेटा, यहाँ 9,80,000 नहीं, अब 9,20,000 ले, 9,20,000 ले. तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हुआ? 80,000. डिफरेंस 80,000. ठीक है, डिफरेंस इज 80,000. तो अभी ये 80,000 टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? तो आपको क्या करना है? यू हैव टू कंपेयर, यू हैव टू टेक टू फिगर्स. 10% ऑफ दिस कंसिडरेशन, मतलब 9,80,000 का 10% कितना होगा? 98,000. और 98. ये दोनों में से हायर कौन सा है? 98. 98,000. Now see whether the discount I have received is greater than 98,000 or not. देखो मुझे डिस्काउंट ग्रेटर है या नहीं है? तो नहीं. तो भले ही अमाउंट देखो 50,000 से ज्यादा है लेकिन फिर भी टैक्सेबल नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि ये 10% ऑफ द कंसिडरेशन पेड से कम है. मतलब आपको क्या करना है? यू आर सपोज टू टेक 10,000, 10% ऑफ द कंसिडरेशन पेड और 50,000, विच एवर इज हायर आप लो और उसको डिस्काउंट के साथ कंपेयर करो. ओके, इफ द डिस्काउंट इज ग्रेटर देन दैट, ओके, अगर डिस्काउंट ग्रेटर देन दैट होता, ओके, तो इट वुड बी टैक्सेबल. सपोज ये डिस्काउंट का अमाउंट मेरा 1 लाख होता, तो यहाँ अगर मुझे डिस्काउंट 1 लाख मिला होता तो इट वुड बी, इट मे हैव टैक्सेबल. ओके, तो आपको क्या करना है? आपको हमेशा ये दो चीज को कंपेयर करनी है. डिस्काउंट, ओके, is greater than higher of the 50,000 और 10% of the consideration. अगर ये दोनों में से जो हायर है, इससे भी हायर आपका डिस्काउंट है,
तो डिस्काउंट विल बी टैक्सेबल। और यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में यहाँ दो ही प्रॉपर्टी आती है, लैंड एंड बिल्डिंग। और यहाँ पे ये जो अमाउंट है, मतलब जो ट्रांजेक्शन है, आपको सिंगल ट्रांजेक्शन लेके कंसीडर करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, सिंपल सा एग्जाम्पल है, देखो हम फटाफट कर लेते हैं इसको। हाँ, मिस्टर ए इज अ डीलर इन अ शेयर्स। देखो ये शेयर्स का डीलर है, मतलब इसको कोई भी शेयर्स गिफ्ट में देगा इसके लिए टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि शेयर उसके लिए क्या होगा, स्टॉक इन, उसके लिए कैपिटल असेट नहीं बनेगी। आपको पहले क्लिक होना चाहिए कि आप जो चीज का धंधा करते हो और वही चीज आपको गिफ्ट में मिलती है तो आपके लिए स्टॉक इन कैड है, इट इज नॉट टैक्सेबल। इट बिकम्स टैक्सेबल फॉर यू ओनली इफ यू हैव रिसीव्ड इट एज ए कैपिटल असेट। ओके, तो अगर शेयर्स में आप डीलर हो एंड यू रिसीव्ड फॉलोइंग विदाउट कंसिडरेशन, देखो ये सभी चीजें आपको विदाउट कंसिडरेशन मिले, ओके, फ्रॉम द फ्रेंड बी। ओके, तो फ्रेंड बी से आपको ये सभी चीज, मतलब एक ही बंदे से आपको सब कुछ मिल रहा है। ओके, ठीक है, उसको कैश गिफ्ट मिला 75,000 ऑन हिज मैरिज। आपको मैंने बताया अभी भी कि आपको कुछ भी आपको मिलता है ऑन ओकेजन ऑफ योर मैरिज, इट इज नॉट टैक्सेबल, तो ये टैक्सेबल नहीं होगा। समझ में आया आपको? नाउ सी ही इज रिसीविंग द Yes, sir. बुलियन। देखो बुलियन गिफ्ट में मिलता है और फेयर मार्केट वैल्यू इज 60,000, ओके, ऑन 19 जून। देखो 60,000 50,000 से ज्यादा है, दूसरे किसी में टोटल करने की जरूरत नहीं। अगर दो तीन आपको मूवेबल प्रॉपर्टी दी होती तो सबका टोटल करते। यहाँ में दिख रहा है कि भाई एक ये मूवेबल प्रॉपर्टी मिल रहा है और एक दूसरा उसको मिल रहा है शेयर्स कुछ मिल रहा है, ओके, तो शेयर्स ये टैक्सेबल नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे बुलियन आपको मिल रहा है और बुलियन की वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, ओके, तो देखो since the bullion include in the definition of property, therefore when the bullion is received without consideration it is taxable since the fair market value, मतलब ये 60,000 50,000 से ज्यादा है तो 60,000 will be taxable। समझ में आया आपको ये? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. Yes, Yes, sir. sir. Now see you are purchasing a plot of land at फरीदाबाद। देखो फरीदाबाद में आप प्लॉट ऑफ लैंड बाय करते हो और उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है, 5 लाख रुपए। और मिस्टर बी हैड परचेज ऑन 20th अप्रैल 2020। कितने में परचेज किया? 5 Zero, lakh. without consideration. ओके, यस यस यस, परचेज नहीं किया, उसको किससे मिल रहा है? विदाउट कंसिडरेशन मिस्टर बी से मिल रहा है। सॉरी, वो परचेज नहीं कर रहा है, ही इज रिसीविंग द प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम हिज फ्रेंड हुज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 5 लाख रुपए। सभी चीजें 1, 2 एंड 3 ही इज रिसीविंग फ्रॉम दी मिस्टर बी, जो उसका फ्रेंड है। तो फ्रेंड से मिलता है तो टैक्सेबल होता है। अगर ये देखो यहाँ पे भी हम सिंगल ट्रांजेक्शन देंगे, प्लॉट ऑफ लैंड उसकी वैल्यू अगर 50,000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल होगा। देखो सिंस द प्लॉट ऑफ लैंड इज एट फरीदाबाद एंड रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन सो इट इज टैक्सेबल, तो पूरा 5 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट इज गिवन कि मिस्टर ए हैज परचेज फ्रॉम हिज फ्रेंड सी, क्या परचेज किया, who is also a dealer in a share 1000 shares of rupees 400 each on 19 June 2021, fair market value of which was 600, okay, and he sold the same in the course of business। देखो ये आप कौन हो, आप शेयर बाजार में शेयर के डीलर हो और आप किसी से भी शेयर परचेस करते हो या तो फिर शेयर्स गिफ्ट में मिलता है, आपके लिए क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है, तो वो तो टैक्सेबल ही नहीं होगा, तो दिस इज नॉट टैक्सेबल। ठीक है, ये पांचवा पॉइंट आपको यहाँ पे दिया है, इन सब में वो नहीं दिया है। ओके, तो यहाँ पे आप लिखिए एक पॉइंट, आपके हाथ में मटेरियल होगा, आप एक पॉइंट लिखिए, ओके, जस्ट अ मिनट, you write down कि Mr. A has purchased a plot of land, okay, stamp duty value of which is 20 lakh
sorry 23 lakh. Stamp duty value is how much? 23 lakh. And the consideration paid is 20 lakh. Okay, stamp duty value is how much? 23 lakh and consideration paid is 20 lakh. Okay, अगर किसी ने उसने क्या पाई किया, उसने प्लॉट ऑफ लैंड. ओके, तो हाउ मच विल बी द टैक्सेबल अमाउंट? देखो यहाँ पे हम देखेंगे वो तरीके से. देखो आपने उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 23 lakh. आपने कितना पे किया है? यू पेड दी 20 लाख. 20 हाउ मच इज द डिस्काउंट? डिस्काउंट इज 3 लाख. 3 lakh. ना उसी डिस्काउंट 3 लाख टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? आपने कंसीडरेशन जो पे किया है उसका 10% निकालोगे. तो कंसीडरेशन कितना है? 20 लाख. 20 lakh. 20 लाख का 10% कितना होता है? 2 lakh. 2 लाख 2 lakh. 2 lakh. 50,000 और रुपीज 50,000. ये दोनों में से हायर कितना होता है? 2 लाख. Sir, और तो ये 2 लाख, ये 3 लाख से, मतलब 3 लाख ये 2 लाख से ज्यादा है. यस और नो? यस. मतलब this sir, is the consideration 50,000. value हाँ, 10% of consideration discount नहीं होगा? 3 lakh का 10% होगा ना? कंसिडरेशन आपने कितना पे किया है? 20. 20 लाख का 10% ऑफ कंसिडरेशन. कंसिडरेशन कितना पे किया है? यहाँ पे क्या लिखा है? 10% ऑफ द कंसिडरेशन. ओके, तो कंसिडरेशन में कितना पे कर रहा हूँ? 20 लाख. 20 लाख का 10% कितना हो रहा है? तो 2 लाख. यहाँ पे भी ऊपर भी मैंने क्या पढ़ाया? थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया, वही पढ़ाया. ओके, ये सपोज समझ लो ये 10 लाख की प्रॉपर्टी मैंने 9,80,000 कंसिडरेशन पे किया, तो 9,80,000 का 10% लिया 98,000 और 50,000. दोनों में से हायर कौन सा है? 98,000. और मेरा डिस्काउंट कितना है? 80,000. तो 80,000 98,000 से कम है तो नॉट टैक्सेबल किया. तो ये भी वही बात है कि आपने कंसिडरेशन कितना पे किया? कंसिडरेशन यू हैव पेड इज दी 20 लाख और 20 लाख का 10% कितना होता है? 2 लाख. और ये 50,000, दोनों में से हायर कितना है? 2 लाख. और 2 लाख से ये मेरा 3 लाख ज्यादा है. ये मेरा डिस्काउंट जो है 3 लाख, ये 2 लाख से ज्यादा है या नहीं? तो आंसर इज यस, इट इज मोर देन दिस. ये मेरी लिमिट बताता है. ये दोनों में से जो हायर है वो मेरी लिमिट बताता है, और इससे भी हायर मेरा डिस्काउंट है तो टैक्सेबल. So here my taxable amount will be how much? Taxable amount will be 3 lakh. Okay, so this 3 lakh will be taxable. So total of these 3 is the income from other sources. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes. टोटल आप अपना Yes, total yes. लीजिए. गलत है ना यहाँ पे शायद. 8,60,60,000 आवश्यक टोटल. Yes, sir. इसको टोटल चेंज कर लीजिए. ठीक है, देखो since the difference is 1 lakh, डिफरेंस कितना है? ओके, एक मिनट. ओके, 20 लाख एंड 23 लाख, दोनों के बीच का डिफरेंस 3 लाख है. 3 लाख टैक्सेबल होगा. ओके, 1 लाख कहाँ से? सिंस द डिफरेंस इज ग्रेटर देन 1 लाख. ये गलत लिखा है, तो निकाल दीजिए. गलत लिखा है कि सिंस द डिफरेंस इज 2 लाख, यहाँ 2 आना चाहिए. 2 लाख. ओके, यहाँ 2 कर दीजिए. 2 लाख आना चाहिए ना. डिफरेंस देखो, आपने कंसिडरेशन कितना पे किया है? 20 लाख. 20 लाख का 10% कितना होता है? 2 लाख. यहाँ 2 कर दीजिए. ये भी गलती है यहाँ पे. यहाँ पे 2 कर दीजिए. 2 लाख से डिफरेंस ज्यादा है, मतलब 3 लाख विल बी टैक्सेबल. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. विदाउट एनी क्वेश्चन. देखो ये हमने डिस्कस कर No, लिया sir. है. अभी सिर्फ हमें परमिसेबल डिडक्शंस देखने हैं. तो 5-10 मिनट का काम है और फिर हमें एक एग्जाम. ओके, तो कल तो हम इसको कंप्लीट कर ही लेंगे और कल पीपीपी भी स्टार्ट कर देंगे. हेलो. यस सर आप वाला पॉइंट समझाओ. कानो. पॉइंट है ना मिस्टर ए परचेज फ्रॉम हिज बैंक आयो 1000 શેર વાળો જે છે ને 4th નંબર હા, એ સમજાવો ને ફરી. જો તમે આ ગમે તે વસ્તુ અહીંયા લખેલી છે ને, અહીંયા આપણે વાંચવાની કોઈ જ જરૂર નથી.
એનું કારણ તમને કહું, અહીંયા શું લખ્યું છે, મિસ્ટર એ ઇઝ અ ડીલર ઇન અ શેર. મિસ્ટર એ કોણ છે? શેર્સમાં ડીલર છે. એટલે શેર્સ એના માટે શું થયું? સ્ટોક ઇન ટ્રેડ થયો. હવે એને કોઈ સ્ટોક ઇન ટ્રેડ તમને ગિફ્ટમાં આપે તો ગિફ્ટ, સપોઝ અહીંયા એવું કહે છે કે મિસ્ટર શેર્સ પરચેઝિંગ ધ શેર્સ फ्रॉम मिस्टर सी, तो मिस्टर सी से मिस्टर ए ने शेयर्स परचेज किए. ओके, 1000 शेयर्स पर ₹100 इच, तो 400 इच. 400 રૂપિયામાં એને બાય કર્યા અને એવું કહે છે કે 600 રૂપિયામાં એને વેચી દીધા કોઈને. ઓકે, તો 200 રૂપિયા એના માટે ટેક્સ. એટલે એનો મતલબ શું છે કે જેની ફેર માર્કેટ વેલ્યુ 600 છે એવી વસ્તુ તમને 400માં મળી. લોજિકલી ડિફરન્સ ટેક્સેબલ થવો જોઈએ. અને અહીંયા કેમ ટેક્સેબલ નહીં થાય? કારણ કે મિસ્ટર એ કોણ છે? તો કે ડીલર ઇન શેર્સ છે. અને સપોઝ કોઈ પણ વસ્તુ તમે જે મળે છે એ જો તમારા માટે શું હોય, સ્ટોક ઇન ટ્રેડ હોય, તો અહીંયા ડીલર માટે સ્ટોક ઇન ટ્રેડ કહેવાશે શેર્સ. ઇફ યુ રિસીવ ધ સ્ટોક ઇન ટ્રેડ, તો શેર્સ તમે જાતે શેર્સના ડીલર છો, તમને કોઈ શેર્સ ગિફ્ટમાં આપે તો તમારા માટે ટેક્સેબલ નહીં થાય, એ તમારી બિઝનેસ ઇન્કમ થશે. શેર લઈને વેચી દે કોઈને તો એના માટે બિઝનેસ ઇન્કમ તરીકે ટેક્સેબલ થશે, અહીંયા નહીં. સમજાયું? યસ સર. ઓકે, એની અધર્સ ક્વેશ્ચન? નો સર. નો સર, નો ક્વેશ્ચન. એટલે સર આપણા ધંધાની ઇન્કમ વસ્તુ કોઈ આપણને આપે તો એમાં ટેક્સ ના લાગે એના પર, એવું જ ને? એ તો સ્ટાર્ટિંગ, હા બસ એ જ મેં તમને કીધું ને. હા, એવું જ. ધંધાની વસ્તુ એટલે મતલબ જે વસ્તુ તમારા માટે રો